Good evening, all. I request everyone please turn on your cameras. Okay, so in the morning session, we started with the requirements part. Okay, and in requirements, we discussed multiple points. Now, I just want you all to come up with points which we have discussed in the morning session. Okay, just raise your hand. I will call your name, and you have to just tell me. Okay, what all points we discussed in the morning. Okay. And before doing that, like Manju, can you just give your brief introduction, like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and your upcoming SSB date? My name is Manju Kumari Gurjar and I am from Tonk, Rajasthan. And so far, I have given 8 attempts in which 5 times I was conference out and 3 times I was screened out. And my SSB attempt is for SSC Tech and FCAT entry. Oh, fine. So Manju, let me brief you about this workshop. This workshop is mainly divided into four modules, and our module one is related to psychology. Module two is stage one. Module three is personal interview, and module four is GTO. Okay, and we are going to cover all these four modules in 4 weeks. We are going to have two sessions on a daily basis, one in morning from 5 to 7:30 a.m. and one in the evening 9 to 11 p.m. Again, morning sessions from 5 to 6, we are going to conduct the lecturate sessions. You have to come prepared with one lecturate and you have to deliver. And when from 6 to 7:30, 8 a.m., we are going to cover the conceptual part. Do's and don'ts, what all things we need to keep in mind. Okay, वो चीज है. And in the evening sessions from 9 to 10, we are going to again conduct the lecturate sessions and all. Okay, and from 10 to 11, we are going to implement practical implementation of whatever we are going to learn in the morning sessions. जो भी do's and don'ts, what all things we need to keep in mind while while tackling various techniques and test. ठीक है, जो हम लोग मॉर्निंग में कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखेंगे उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इवनिंग में 10 to 11 के बीच में करेंगे. ठीक है. ऑन अ डेली बेसिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू मॉर्निंग सेशंस. ठीक है, मॉर्निंग सेशंस की रिकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द ग्रुप. ठीक है, मेक श्योर यू अटेंड द इवनिंग सेशंस. ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम 10 to 11 तो अटेंड कर ही लो, क्योंकि 9 to 10 तो हम लोग लेक्चर प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है, तो वो चीज है. ठीक है, मंजू एंड दीपक, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, So, sir. I have a या. question. Like we have to select the lecturate topic for ourselves all by ourselves. Like you're not gonna assign it. या यू हैव टू प्रिपेयर लाइक ऑन योर ओन. एंड मतलब पहले से ही प्रिपेयर करके आओ, रिसर्च करो चैट जीपीटी पे. कोड्स, फ्रेजेस, जो भी आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, जितना बढ़िया सुंदर आप लेक्चरेट प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना चाहते हो, वो करके लेके आओ. ठीक है ना मंजू? Okay, sir. या. Sir, ओके and the दीपक. duration of lecture it will be? No, like there is no limitation. If you want to deliver 5 minute lecture, you can deliver 10 minute lecture. Like it is totally fine. ठीक है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. तो बोलते रहो, प्रैक्टिस सही है. ठीक है ना. Okay. जब ये वर्कशॉप कंप्लीट होगी आपके, एटलीस्ट अगर हम लोग 4 वीक्स का अगर मॉड्यूल है, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में दो दो सेशन हो रहे हैं. ठीक है ना, तो समझ जाओ हमारे पास कितने 40-45 जितने भी सेशन होंगे उसका डबल हमारे पास होना चाहिए लेक्चरेट. तो लाइक आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस वर्कशॉप, आपके मोर देन 100+ लेक्चरेट प्रिपेयर होने चाहिए बाय हार्ट, और मतलब हाई लेवल लेक्चरेट. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऑन द स्पॉट आप रीफ्रेज कर रहे हो, रीफ्रेम कर रहे हो एंड ऑल. मतलब पूरा रिसर्च के साथ कोड्स एंड फ्रेजेस एंड ईडीएम्स जो आप इंट्रोड्यूस करोगे बीच में, एलिमेंट्स एंड ऑल, वो सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए. ठीक है दीपक, दिस इज योर फर्स्ट सेशन ना? Yes, sir. Yeah, just give your brief introduction, like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and your upcoming SSB date. Yes, sir. So, good evening, sir. My name is Deepak Gupta. I have recently graduated from Graphic Era University, Dehradun, and I belong to Panipat, Haryana. This is my first SSB, and my SSB date is scheduled for in 11th of December. Yes, Okay, sir. fine. Smriti Smarak. Yes, sir. Yeah, So, just Jai give Hind your everyone. introduction. Yeah. My name is Smriti Smarak Nayak, and I am basically from Odisha, but currently staying in Hyderabad because I am working in Hyundai Motors India Engineering. And this is going to be my third attempt once I screen out. And the very like the previous one, I was documented out. And my next test is be in 10th October. Sorry, 10th December.
How you got document out? Because of the provisional certificate I have, I do not have that degree certificate. तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को 1 साल से ज्यादा हो गया था, हाँ, तो वो चीज तो अलाउड नहीं है ना, ठीक है ना। नहीं, मेरे को डिजी लॉकर में वो फेच करना था, वो नहीं हुआ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जब मैं फ्लाइट में बैठ के वापस आ रहा था तो उस पे फेच हो गया, बट उस हम्म, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हुआ। किस्मत। ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, है ना, क्या पता, ठीक है, कुछ नया परमानेंट कमीशन ही मिल जाए उसके बाद। ओके, ओके, एंट्री कौन सी थी तुम्हारी? बोथ आर एसएससी टेक। एसएससी टेक, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो लाइक वी डिस्कस्ड फ्यू रिक्वायरमेंट इन द मॉर्निंग सेशन, है ना। यस सर, तो जस्ट टेल मी व्हाट ऑल पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग सेशन बिफोर आई हैव स्टार्टिंग बीन विद द एट। ओएलक्यूज। जिसने मॉर्निंग का सेशन अटेंड किया था या रिकॉर्डिंग देखी हुई है, ललित। Sir, yes. Sir, first you have first point is that English is compulsory for the communication, and after that, knowledge about self, talk to your parents and a family member, and current affair is must compulsory. You have to read newspaper in daily basis, and after that, you have to explore all the things. मतलब जितना घूमना चाहो जितना घूम सको, and Yeah, more than observation. sufficient LLA, ठीक है ना। सी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेसिफिकली इन इंग्लिश एंड फ्लुएंसी, ठीक है भाई, इंग्लिश के बिना तो कहीं गुजारा नहीं है, एसएसबी तो छोड़ दो, ठीक है। लाइक आपको कहीं भी जाओगे इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी, ठीक है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे वहां पर भी इंग्लिश में ही बात होनी है, ठीक है। जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल्स होता है, आई एम टेलिंग यू, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, ठीक है, दोज हु आर फ्रॉम आईटी सेक्टर, ठीक है, जो हाईली टेक्निकल बंदे होते हैं ना, उनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता, वो काम करोड़ों का करके दे रहे हैं, लेकिन उनको वो कंपनसेशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है। और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है, उसका फायदा कौन उठा रहा है? टेक लीड्स उठाते हैं, ठीक है ना। वो अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं उनका प्रोजेक्ट जाके काम करके, ठीक है। प्रमोशन किसको मिल रहा है? टेक लीड को मिल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, लाइक लाइक हर जगह काम आने वाली है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, ठीक है, एंड फ्लुएंसी, ठीक है। उसके लिए वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लेक्चर इट ऑन अ डेली बेसिस, मेक श्योर यू डोंट लाइक मिस आउट ऑन एनी lecturing, ठीक है, विदाउट फेल। ओके, Karan, any other point we discussed in the morning session? Smile and liveliness, Liveliness, calm and composed nature. yeah, calm and composed nature and liveliness, ठीक है, you have to maintain, ठीक है, liveliness थ्रू आउट irrespective of the situation। वो आपसे लाइक बदतमीजी कर सकता है in order to create pressure on you, ठीक है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइक में आप पे प्रेशर आएगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे वो बोलेगा कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, व्हाई यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, है ना। आपको वो लाइबिलिटी बोल देगा, धरती पे बोझ बोल देगा। लड़कों से तो ऐसी बदतमीजी कर देते हैं, ठीक है ना। लड़कियों से तो थोड़ा सा लाइक सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करेंगे, लेकिन लड़कों से तो खुलेआम चलता है, ठीक है ना। लड़कों के तो मुंह पे ही कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और लड़के मुंह बना लेते हैं कि यार ये क्या बोल दिया सर ने, ठीक है, मैं तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सोच के आया था, और ये तो लाइक ऐसी की तैसी कर रहे हैं। ओके, तो भाई आप इस पे क्या कर सकते हो? आप अगर मुंह बना लोगे, आप गुस्सा हो जाओगे कि यार ये तो क्या है, मैं ऑफिसर का इंटरव्यू देने आया हूँ, मुझसे बदतमीजी की जा रही है। आप ये सब नहीं कर सकते, है ना। यू हैव टू मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है ना। आपको दिल पे लेना नहीं है। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। काम एंड कंपोज नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी लाइक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कंपोजर नहीं मेंटेन करोगे तो आप गलती करोगे, ठीक है। बीट योर साइक, ठीक है। साइक में प्रेशर किससे पड़ेगा? टाइम की वजह से पड़ेगा। कंपोजर नहीं होगा तो आप जो लिखना चाहते हो, जो लाइक एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। पर्सनल इंटरव्यू में कंपोजर खो दोगे, कुछ ऐसी चीजें मुंह से निकल जाएंगी, जो चीज आप खुद ही बोल दोगे कि भाई ये क्या मुंह से निकल गया भाई, ठीक है ना। पकड़ लाइक खुद ही तुम बोल दोगे कि भाई सर मैं ही रिजेक्ट करता हूँ अपने आप को, ठीक है ना। तो ऐसे मुंह से चीजें निकल जाती हैं, गॉट इट। तो यू हैव टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आउट दी एसएसबी इंटरव्यू, है ना। एंड ये सिर्फ आप ना उस 5 दिन में नहीं कर सकते, आपको डे टू डे लाइफ में अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन के साथ जहां पर आप पे प्रेशर पड़ रहा हो, क्योंकि अगर आप पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो भैया आप गलत जगह हो, ठीक है ना। आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा, है ना। आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने घर में लो, अपने ऑफिस में लो, है ना। अगर लाइक ऑफिस में कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है,
है ना, जाके इनिशिएटिव्स लो। जैसे लाइक मेरे ऑफिस में क्या होता है, हैकाथॉन्स और ये सारी कंडक्ट करवाते हैं वो लोग। ठीक है, तो लाइक जब आप ये इनिशिएटिव्स लेते हो, हैकाथॉन्स में पार्ट लेते हो, मैराथॉन्स और लाइक जो भी टेक्निकल स्टफ चीजें हम लोग करते हैं, अदर देन आर जॉब, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड होता है। तो आप वो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन, ठीक है, आपकी इंप्रूव होती है, कैसे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो जब आप बहुत सारी लाइक चीजें एक साथ लाइक टैकल कर रहे होते हो, उससे आपका कंपोजर बढ़ता है। ठीक है ना, आपको पता है यार मैंने ये सारी चीजें कर रखी हैं पहले, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, एक वो सेल्फ बिलीफ होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उससे कंपोजर आ जाता है कि हाँ चीज लाइक मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, तो काम एंड कंपोज नेचर, कूल हेडेडनेस, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्माइल मेंटेन करके रखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, आपसे वो कुछ भी बोले, ठीक है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लाइक ऑलवेज मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है ना, वो चीज हो गई। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड फ्लुएंसी, नॉलेज अबाउट सेल्फ, जो ललित ने बोला, सेल्फ अवेयरनेस, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, है ना। आपको तो आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छा ही सोच रहे होंगे, लेकिन क्या पता उनके लाइक ख्यालात आपके साथ मैच नहीं करते हो। ठीक है ना, उनका कुछ और सोच ना हो आपके बारे में। ठीक है, तो जाके यू कैन लाइक टॉक टू योर पेरेंट्स, है ना, यू कैन टॉक टू योर सिबलिंग्स, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, है ना, एक बार जान तो लो कि ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम तो सोच रहे हो कि तुमसे अब बढ़िया कोई दोस्त ही नहीं है ना, दोस्त हो तो मेरे जैसा ही हो, लेकिन एक बार दोस्त से तो पूछ लो कि वो लाइक इस दोस्ती को किस उस पे रखता है ना। तो वो चीज हो गई। नॉलेज अबाउट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ यू डील विद पीपल एंड ऑल, करंट अफेयर्स, ठीक है, मतलब वैसे तो आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट ओनली गोइंग टू इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के लिए नहीं है सिर्फ, वो आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करेगी, आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव करेगी, आपका लाइक ओवरऑल फुल फुल ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, ठीक है, आपको बढ़िया आइडियाज आएंगे। ठीक है, यू विल कम अप विद आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। ठीक है, जैसे अभी क्लाउड सीडिंग आया, फिर लाइक हाइड्रोपोनिक का फार्मिंग हो गई। ठीक है, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस, वो जो चेम्बर्स बना के फार्मिंग करते हैं, है ना, लाइक स्टबल बर्न की बर्निंग को कैसे टैकल किया जाता है ना, केमिकल पूसा से। सो ये सारे आइडियाज आपको कहाँ से आएंगे? ये न्यूज़पेपर में आएंगे। ठीक है ना, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स डेवलप की जा रही है टू टैकल डे टू डे लाइक प्रॉब्लम्स। न्यूज़पेपर इज अ वेपन टू डील विद एसएसपीएस। ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन है। अगर इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड डिलीवरिंग लेक्चरेट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट लेवल लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गॉट इट? जब आपने देखा होगा जो नॉलेजेबल बंदा होता है ना, वो बड़ा काम एंड कंपोज तरीके से बात करता है, लाइक उसकी बातों में ही पता चल जाता है कि ये बंदा बड़ा शांत है ना, लाइक मेच्योरिटी के साथ बात कर रहा है। ठीक है, अगर लाइक आप घबरा रहे हो बात करते हुए, कॉन्वर्जेशन, भाई सामने भी ऑफिसर बैठा है, ठीक है, अगर आप उसके सामने घबराओगे तो वो कैसे बात करेगा? उसको लगेगा भाई इसकी तो फटी पड़ी है पहले से ही, मैं क्या ही पूछूंगा इससे, है ना। तो वो वाला सिग्नल नहीं जाना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो चीज पता चलती है सामने वाले को। गॉट इट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड फ्लुएंसी, नॉलेज अबाउट सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट। ठीक है, लेक्चरेट, ठीक है, डिलीवर करने ऑन अ डेली बेसिस, एक्सपोजर एंड ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, क्योंकि फौज में तो आपको हर एक चीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आप नॉर्थ के हो साउथ में पोस्टिंग आ जाएगी, साउथ के हो नॉर्थ में आ जाएगी, और दोनों मिलके नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी। ठीक है, यू नेवर नो कि आप कहाँ जाओगे। तो वो एक्सपोजर एंड ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, ट्रेडिशंस है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, मैं मेरे एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो वो मेरे साथ एसएसबी दे रहा था, तो उनके यहाँ पे कल्चर क्या है कि लाइक अगर किसी लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कान के पास फूल रखते हैं एक। ठीक है, और वो गांव में ऐसे लाइक मतलब नॉर्मली जैसे डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, मार्केट जाना है तो फूल लगा के जा रहे हैं। ठीक है, और लाइक लड़के को रखना है तो वो कहीं और फूल रखेगा, कान के पास रखेगा ऐसा। मैंने बोला भाई ये क्या तरीका है? तो बोलता भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। हमने बोला भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उनके कल्चर और ट्रेडिशन डिफरेंट है। नागालैंड में जाओगे, वहां पे कुत्ता मार के खा रहे हैं, हमारे लिए तो यहाँ पर लाइक वो तो क्रुएलिटी हो जाएगी। वहां तो लेकिन खाया जा रहा है खूब चाव से, है ना। अरुणाचल में जाओगे, चींटियों की चटनी बना के खा रहे हैं। गॉट इट? तो आपको ये ओपन माइंडेडनेस रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप बिहार से हो, अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखा होगा, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, कि बिहार का मैनेजर था, वो गया साउथ में, केरला में,
ठीक है, उसने बीफ बैन कर दी कैंटीन में, तो उन लोगों ने बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली बैंक में। ठीक है, वो बेचारा मैनेजर करे तो करे क्या। ठीक है ना। तो वो चीज है, एक्सपोजर एंड ओपन माइंडेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सामने वाले की कल्चर ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। गॉट इट। और लाइक फौज में तो आपको पता ही है, लाइक सर धर्म स्थल, एक छत के नीचे सारे लाइक रिलीजन्स है ना प्ले करते हैं। गॉट इट। तो वो चीज हो गई। एंड लाइक फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, लाइक इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू। ठीक है ना। मतलब आपके पास जो भी हो रहा है आसपास, आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस के बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले उसके बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, उसके सीईओ का नाम क्या है, डेजिग्नेशन, वो जो हिरार्की होती है, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू टॉप, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गॉट इट। यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो थर्ड एसी कोच में कितनी सीट्स होती हैं, स्लीपर में कितनी लाइक सीट्स होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एसी एंड सेकंड एसी, है ना, आईसीएफ और एलएचबी कोचेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिक चीजें ऑब्जर्व करो अपने आसपास, है ना। यू इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, कौन कौन से स्टेट्स आप क्रॉस करके जा रहे हो। ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, लाइक अपने डे टू डे लाइक जो चीजें आप कर रहे हो, वो सब लाइक ऑब्जर्व करो अपने आसपास। एंड लाइक ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। देन काम एंड कंपोज नेचर इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्माइल यू हैव टू मेंटेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। ठीक है सर, विच न्यूज़पेपर शुड वी रीड, द हिंदू, लाइक जो तुम्हें समझ आता है। ऐसा कोई नहीं है भाई डायरेक्टली हिंदू पे पहुंच जाओगे तो लाइक कोई मतलब नहीं है। जो चीज समझ आती है वो लाइक न्यूज़पेपर प्रेफर करना है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हिंदू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी तो है नहीं। ठीक है, आपकी बस इंग्लिश काम चलाऊ होनी चाहिए कि भाई लाइक आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स लाइक नेक्स्ट लेवल हो जानी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी है। अगर आपने लाइक मिस्टेक करी हुई है तो रिजिडिटी मत दिखाओ। ठीक है, कि लाइक आप ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हो जो डिफेंड भी नहीं की जा सकती, एंड आपको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता है कि भाई ये क्यों कर रहा है। ठीक है, देर इज नो रिक्वायरमेंट, है ना। लाइक साफ साफ दिख रहा है भाई, तुमने अगर ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए, टेंथ में तुम्हारे अच्छे मार्क्स थे, ट्वेल्थ में नहीं आ पाए हैं, तो लाइक आपने अपना लाइक डिस्ट्रैक्ट किया अपने आप को फ्रॉम लाइक योर मेन ऑब्जेक्टिव। आपके जो बोर्ड एग्जाम थे वहां से आप डिस्ट्रैक्ट होके जिसमें भी गए, बीट स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनसीसी और एनीथिंग। ठीक है, तो बेटर है कि आप एक्सेप्ट करके बताओ कि आपका ध्यान कहाँ पर था उस टाइम पे। गॉट इट। ऐसी चीजों को डिफेंड करने जाओगे तो फिर लाइक वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी है। इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स इन योर पास्ट, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, मतलब आप मिस्टेक को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप करेक्ट कैसे करोगे। गॉट इट। तो वो चीज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेच्योरिटी, समझ। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, मेरे एक फ्रेंड था इन माय फर्स्ट एसएसबी इन 2015, भाई वो कुछ भी बोल के आ रहा है अपने एसेसर को। ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट लाइन। ठीक है, तुम्हारा दोस्त तो है नहीं जिसके साथ सब कुछ बता रहे हो, है ना। तो समझ, व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू स्पीक, किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई आप फ्यूचर ऑफिसर्स हो। ठीक है, आपके हर एक वर्ड का वैल्यू है। ठीक है, आप ऐसे ही कुछ में मत बोल दो कि अभी तो हम कैंडिडेट हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई असेसर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हारे वर्ड से ही वो आगे का लाइक क्वेश्चन निकालेगा। गॉट इट। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको अगर लीड देनी है तो ऐसी लीड दो जिसपे आप आगे चल के टैकल कर पाओ। गॉट इट। तो मेच्योरिटी, समझ। ठीक है, व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू स्पीक, नो लूज टॉक। ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ और एल्डर्स के साथ बात करते हो, उसी लेवल पे आपको बात करनी है। गॉट इट। हम्बलनेस, हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो डॉर्मेट्री में जो भी हो रहा है, तुम्हारी कितनी भी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, वहां पर आपको लाइक मस्ती नहीं करनी। ठीक है, मन तो करता है कि जीटीओ में थोड़ी मस्ती हो जाए, लेकिन लाइक यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, है ना। जो भी लाइक पोलाइटनेस आपको दिखानी है दिखाओ वहां पे। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलते रहो। गॉट इट। ठीक है, ताकि लाइक वो लगे कि हाँ भाई टीम चल रही है, काम चल रहा है। ओके, ये चीज है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मेरा फ्रेंड जब लाइक व्हेन ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम पुणे टू
नोएडा, ठीक है, फॉर CGSB। तो उससे पूछ लिया था कि नंबर ऑफ लाइक सीट्स इन योर एयरक्राफ्ट। तो उसने ऐसे बोला था कि लाइक सर आइल के दोनों साइड में 3 3 सीट्स थी, एंड ही वाज सिटिंग एट 31 P। उसके पीछे एक और रो था। सो ही मल्टीप्लाइड 6 into 32, एंड देन ही गॉट दिस नंबर। तो दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो जो भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं SSB में, जैसे लाइक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अराउंड मोर देन 100 प्लस लेक्चरेट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये 100 प्लस लेक्चरेट में से कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप बढ़िया प्रेजेंटेशन दे के आओगे वहां पे। ठीक है, आपके पास भले ही डेटा ना हो, इतना बढ़िया बोल के आओगे कि लोग बोलेंगे यार क्या लेक्चर डिलीवर किया। ठीक है, क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी होगी उस चीज की। आपने देखा होगा ध्रुव राठी के, अगर आप शुरुआत के वीडियोस देखोगे जाके और आज के वीडियोस देखोगे, भाई जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी है, जो कंसिस्टेंटली डिलीवर करता रहेगा। ठीक है, उसका लाइक वो चीज लाइक इम्प्रूवमेंट होगी, है ना, डे बाय डे आपका लाइक अगर 1% भी इम्प्रूव हो रहा है, देन यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो लाइक 1% से ज्यादा ही इम्प्रूव होगा ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप दो दो लेक्चर डिलीवर करते हो। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दुनियादारी, स्ट्रगल। ठीक है, एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, है ना, अपने आप को अलाउ करो डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तब जाके आप ये सारी चीजें सीख पाओगे। अदरवाइज इफ यू आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, या अपने एल्डर सिबलिंग्स के प्रोटेक्शन में हो, दे आर मेकिंग डिसीजंस फॉर यू, तो फिर प्रॉब्लम है। गॉट इट। एंड जो भी कर सकते हो यार, मतलब अपना PIQ बहुत ही लाइक तगड़ा बनाओ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, तो जाके लाइक एडमिशन ले लो हॉर्स राइडिंग में। स्विमिंग का शौक है तो स्विमिंग करो जाके। आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल वहां पर दिखनी चाहिए कि यार ये बंदा जिंदगी जी रहा है। ठीक है, आप वेट नहीं कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का कि भाई एक बार रेकमेंड हो जाऊंगा फिर करूंगा ये। ठीक है ना, तो वो चीज है। गॉट इट। तो yeah, आप अभी से जीना शुरू कर दो चीजें। इफ यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, स्टार्ट ट्रैवलिंग। ठीक है, इफ यू वांट टू गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। डांस करना चाहते हो, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, तो वो लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दो। ठीक है ना, और वही सारी चीजें आपको अपने PIQ में मेंशन करनी है जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो। ठीक है ना, अगर आपको सिंगिंग का शौक है, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। या आपको लाइक स्टैंड अप करना पसंद है, तो आप ओपन माइक में जाओ, ओपन माइक ज्वाइन करो। ठीक है, वहां पर जाके आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये सारी चीजें ऐड करो एंड अपनी लाइफ में ऐड करो, एंड देन ये ऑटोमेटिकली आप PIQ का पार्ट बन जाएगा। और व्हेन यू आर लाइक एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज स्टफ इन योर लाइक डे टू डे लाइफ, तो आप लाइक इंटरव्यू में भी जस्टिफाई कर पाओगे, बिकॉज ये चीजें आप लाइफ में कर रहे हो। गॉट इट। देन कम्स दी 15 OLQs। ये हमारे रूल्स हो गए। ठीक है, हमारा अगर SSB एक गेम है, ठीक है, तो दीज 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आर लाइक रूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। सो इन ऑर्डर टू, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, लाइक हमें ये पहले चीजें लाइक समझ तो आनी चाहिए कि भाई ये रूल्स हैं क्या। देन ओनली वी कैन प्रोजेक्ट दीज क्वालिटीज इन फ्रंट ऑफ द असेसर। प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, है ना, तो वो चीज है। हेडिंग डालो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एनीवन हैविंग एनी डाउट? जिन लोगों ने मॉर्निंग सेशन अटेंड नहीं किया था, मैंने एक लाइक शॉर्ट में लाइक बता दिया, समराइज कर दिया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज we'll मूव टू ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, हेडिंग डालो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। देयर आर 4 factors which contains 15 OLQs, ठीक है, commonly called as officer like qualities in SSB. These 15 qualities are required in a candidate for recommending him or her in SSB. ठीक है, there are 4 factors which contains 15 OLQs, commonly called as officer like qualities in SSB. These 15 qualities are required in a candidate for recommending him or her in SSB. ठीक है, तो लाइक डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हर एक फैक्टर का अपना सिग्निफिकेंस है। गॉट इट। और लाइक अपनी अपनी क्वालिटीज लाइक प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। फैक्टर 1 इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू आवर माइंड। ये ऊपर का पार्ट। ठीक है, फैक्टर 1 इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग।
ठीक है. फैक्टर वन इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. दिस इज रिलेटेड टू आवर माइंड. दिस पर्टिकुलर फैक्टर कंसिस्ट ऑफ 4 OLQs. 4 OLQs में सबसे पहली जो OLQ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट OLQ है, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इफेक्टिव इंटेलिजेंस. ठीक है. Effective intelligence is simply means to use your intelligence. Simply means to use your intelligence to the best effect so that you can get things done well. ठीक है. Simply means to use your intelligence to the best effect so that you can get things done well. मतलब सिर्फ करना नहीं है. अगर सीडीएस आप क्लियर कर रहे हो, सिर्फ कट ऑफ एक आध मार्क्स से कर ले क्लियर हो जा रहा है, उससे काम नहीं चलेगा. अगर लाइक इंटेलिजेंस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है. अगर फोड़ रहे हो तो ऐसा फोड़ो कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ रही है. गॉट इट. मतलब इन शॉर्ट यही है. तो ये चीज है. इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज सिंपली मीन्स टू यूज योर इंटेलिजेंस टू द बेस्ट इफेक्ट सो दैट यू कैन गेट थिंग्स डन. मतलब चीजें आप कर ले रहे हो और ऐसा कर रहे हो कि लाइक मजा आ जा रहा है. ठीक है ना. सिंपली मीन्स टू यूज योर इंटेलिजेंस टू द बेस्ट इफेक्ट सो दैट यू कैन गेट थिंग्स डन एंड डन वेल. ठीक है. इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें, इट इज अ सिस्टम फॉर लर्निंग. इट इज अ सिस्टम फॉर लर्निंग हाउ टू चूज द बेस्ट थिंग टू डू. इट इज अ सिस्टम फॉर लर्निंग हाउ टू चूज द बेस्ट थिंग टू डू. ठीक है. अब ये जो बेस्ट थिंग टू डू है ना, पाथ, लाइक हमारे पास मल्टीपल पाथ है. अगर हम लोग सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल पाथ है कि हम लोग एक सीडीएस जर्नी भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. अब मल्टीपल पाथ्स हैं, फिर उनके जो लाइक जो भी पाथ वो आगे दिखाएंगे हमें. ठीक है. उनका अलग अलग पैटर्न होगा. ठीक है. सिलेबस होगा, अलग तरीके से वो लोग पढ़ाते होंगे. गॉट इट. तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर लर्निंग हाउ टू चूज द बेस्ट थिंग टू डू. आप वो सही पाथ चूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, है ना. हाउ टू चूज द बेस्ट थिंग टू डू. दिस इज योर इंटेलिजेंस पार्ट. ठीक है. दिस इज योर इंटेलिजेंस पार्ट. एंड टू मेक श्योर इट गेट्स डन. आपने पहले तो लाइक इंटेलिजेंस यूज करी कि कौन सा पाथ आप चूज करना चाहते हो. आप सीडीएस पाथ फाइंडर से करना चाहते हो या आप किसी एक पर्टिकुलर सीडीएस जर्नी या लाइक फिजिक्स वाला या किसी और लाइक लाइक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को यूज करके आप प्रिपेयर करना चाहते हो. गॉट इट. इसके लिए आपकी इंटेलिजेंस यूज होगी. ठीक है. आपने इंटेलिजेंस यूज करी, आपने एक पाथ चूज किया. ठीक है. अब पाथ तो चूज कर लिया, पाथ तो सब लोग चूज कर रहे हैं. आप अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, किसी भी लाइक सीरीज का आप लाइक वीडियो देखना, किसी भी एग्जाम की तैयारी में कोई किसी ने अगर प्लेलिस्ट बनाई होगी ना, फर्स्ट वीडियो पे देखना मोर देन 2 to 3 मिलियन व्यूज होंगे. लेकिन उसी सीरीज उसी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो देखना, उसमें 5 to 10,000 व्यूज ही होंगे. क्योंकि लाइक वो जो 2 to 3 मिलियन लोग हैं वो लास्ट तक नहीं पहुंच रहे. हाँ, लास्ट तक कौन पहुंच रहे हैं? वही 5 to 10,000 लोग जो सीरियस है उस चीज को लेके, है ना. So what is effective intelligence? It is a system for learning how to choose the best thing to do. This is your intelligence part. कि आप कौन सा पाथ चूज करते हो, वो आपका इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड टू मेक श्योर इट गेट्स डन. ठीक है. आपने जो पाथ चूज किया, बीट सीडीएस और सीडीएस जर्नी, और आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया. ठीक है. आपका सीडीएस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज योर इफेक्टिवनेस. ठीक है भाई. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीडीएस लाइक लाइक पाथ फाइंडर से लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो या अन अकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे हो. आप इफेक्टिवली उसको क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये इफेक्टिवनेस है आपकी. ठीक है ना. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस? सिंपली मीन्स टू यूज योर इंटेलिजेंस टू द बेस्ट इफेक्ट सो दैट यू कैन गेट थिंग्स डन वेल. ठीक है ना. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इट इज अ सिस्टम फॉर लर्निंग हाउ टू चूज द बेस्ट थिंग टू डू. योर इंटेलिजेंस पार्ट, ब्रैकेट में आप इंटेलिजेंस लिख सकते हो. एंड टू मेक श्योर इट गेट्स डन is your effectiveness. Got it? How to choose the best thing to do is your intelligence, and to make sure it gets done is your effectiveness. तो आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन लेने के बाद उसको इफेक्टिवली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल रिजल्ट्स है वो आप लेके आते हो, तब जाके वो इफेक्टिवनेस मानी जाएगी. गॉट इट. तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव इंटेलिजेंस. सिंपली मीन्स टू यूज योर इंटेलिजेंस टू द बेस्ट इफेक्ट सो दैट यू कैन गेट थिंग्स डन एंड डन वेल. It is a system for learning how to choose the best thing to do.
your intelligence, and to make sure it gets done is your effectiveness. Second is reasoning ability. Reasoning ability is also known as mother of all OLQs. Reasoning ability is also known as mother of all OLQs. ठीक है. What is reasoning ability? Reasoning ability is ability to grasp the essentials well and arrive at logical conclusions. ठीक है. Ability to grasp the essentials well and arrive at logical conclusion. आप essentials को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो सिचुएशन की, प्रॉब्लम्स की. ठीक है. एंड फाइनली यू आर एबल टू रीच टू द कंक्लूजन. ठीक है. डिसीजन मेकिंग, आप लाइक लुकिंग एट द फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स. ठीक है. आप उनको एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. एंड फाइनली यू आर एबल टू मेक डिसीजंस और नॉट. आपने जिंदगी में जितने भी डिसीजन लिए आज तक, ठीक है, बी इट योर लाइक स्ट्रीम आफ्टर योर क्लास 10, ठीक है, उसके बाद 12th के बाद आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, ठीक है, हर एक चीज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. सो लाइक यू हैव टू मेक श्योर. ठीक है. तो लाइक एबिलिटी टू ग्रास्प द इसेंशियल्स वेल एंड अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजंस. ठीक है. तो ठीक है, बी इट योर स्ट्रीम आफ्टर योर क्लास 10th, फिर उसके बाद आपने 12th के बाद व्हाट ऑल एग्जाम्स यू के. ठीक है ना. आपने नीट की तैयारी क्यों की, आपने ड्रॉप क्यों लिया, आपने जेई मेंस की लाइक तैयारी क्यों की, इफेक्टिव क्यों नहीं था, आपने वो ड्रॉप लिया, वो ड्रॉप लाइक आपका रैंकिंग इतना इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाया. ठीक है. आपका 10th के बाद लाइक ये ड्रॉप क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए. ठीक है. आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते कि सर पता नहीं, सर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. यू डोंट हैव एनी आइडिया एंड ऑल. तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है. एबिलिटी टू ग्रास्प द इसेंशियल्स वेल, अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजंस. ठीक है. आज मैं एक मॉक इंटरव्यू ले रहा था. तो लाइक मैंने उससे पूछा कि लाइक शी वाज लाइक स्टडिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल इन क्लास 10. ठीक है. और उसका 85% था क्लास 10th में. ओके. तो फिर मैंने लाइक उसका क्लास 12th में ड्रॉप हुआ, 75% पे पहुंच गया. ठीक है. तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, 75% कैसे हो गया. तो उसने बोला कि लाइक उस नहीं ऐसा लाइक मैंने उससे पूछा था, उसने स्कूल चेंज किया था. ठीक है. आर्मी पब्लिक स्कूल में थी पहले वो, उसने एबनेजर करके एक स्कूल है ग्वालियर में, तो वहां से उसने लाइक चेंज किया था कि 12th में एबनेजर में जाएगी. ठीक है. तो मैंने पूछा कि यार ये स्कूल चेंज क्यों किया तूने. तो वो बोलती कि सर ना मेरे को आर्मी पब्लिक स्कूल दूर पड़ता था, तो मुझे आने जाने में टाइम लगता था, और फिर मैं कोचिंग वोचिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी. तो लाइक इंसान कोचिंग वोचिंग क्यों करना चाहता है, ताकि वो इम्प्रूव करे अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एकेडमिक्स को एंड ऑल. ठीक है. कोचिंग का तो मकसद यही होता है. तो मैंने उससे पूछा कि यार लाइक तुमने स्कूल चेंज किया, एबनेजर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया टू इम्प्रूव योर एकेडमिक्स, बिकॉज अब तुम्हारे पास टाइम है. जो तुम्हारा ट्रैवल में टाइम जा रहा था, अब तुम कोचिंग में लगा सकते हो. लेकिन तुम्हारे 10th में 87% है, जब तुम आर्मी पब्लिक स्कूल जब दूर जाया करती थी. अब जब एबेनेजर लाइक घर के बगल में है, अब तुम्हारे 75% आए हैं. तो फिर लाइक वो बोलती कि अब मैं क्या बोलूं यहाँ पे. तो उसने मुझे बोला कि ये जो लाइक सर ऐसा हुआ था कि मेरा जो 12th था वो कोविड 19 में था, तो इन लोगों ने ना लाइक एवरेज मार्क्स दे दिए. तो मैंने बोला एवरेज मार्क्स किसके दिए, 10th तो तुम्हारा 85 था. तो बोलती सर 11th में मेरे 70 थे. तो मैंने बोला 11th में भी तो तुम एबेनेजर में ही थी, घर के बगल में था, कोचिंग तुम्हें बराबर मिल रही थी, तो 70 तुम्हारे 11th में क्यों आए. चलो 12th छोड़ देते हैं, वहां तो एवरेज मार्किंग होगी. तो शी वॉज ब्लेमिंग लाइक अथॉरिटीज की इन लोगों ने ऐसा कर दिया. भाई लाइक 11th में तो कोई कोविड 19 नहीं था, तुम्हें किसने रोका 11th में. ठीक है ना. तो वो सारी चीजें. उसके बाद लाइक शी ऑप्टेड फॉर पीसीबी आफ्टर क्लास 10th. उसने पीसीबी लिया, है ना. फिर लाइक उसके बाद आफ्टर क्लास 12th शी ऑप्टेड फॉर बीए. तो मैंने बोला कि मतलब तुम करना क्या चाहती हो. तुमने 10th के बाद पीसीबी लिया, बायो ले लिया, ठीक है, उसके बाद तुमने नीट भी नहीं दिया, और तुम्हारे दिमाग में कोई मेडिकल स्ट्रीम में जाने का कोई मन भी नहीं था. ठीक है. उसके बाद तुमने बीए ले लिया. बीए तुमने इसलिए लिया क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तुम्हें हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वहां पे पढ़ने को मिलेगा. तो मैंने बोला कि यार जब तुम्हें इतनी हेल्प चाहिए थी और तुम्हें इतनी हेल्प मिली तुम्हारे बीए से, तो तुम्हारा सीडीएस इस अटेम्प्ट में क्यों निकल रहा है. ठीक है. व्हाट हैपेंड टू योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, उसके लाइक फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में सीडीएस निकला ही नहीं. तो मैंने बोला जब तुमने फर्स्ट ईयर में ये सोच लिया था कि मुझे बीए सीडीएस क्लियर करने में हेल्प करेगा, तो तुम्हें 3 अटेम्प्ट कैसे लग गए सीडीएस क्लियर करने में.
तो बहुत सारे ना गैप्स हैं यहाँ पे। जब वो लाइक बता रही है ना, उसको तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, लेकिन आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, तो ऐसा लगेगा यार कुछ तो गैप है ना, कुछ रीजनिंग यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रही। तो वो लाइक वो जो इंटरव्यूइंग सोचेगा कि यार मतलब लड़की को समझ है कि ये क्या बोल रही है ना, तो वो आपको उस लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपनी चीजों को, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सही लग रहा है। हम लोग जब सोचते हैं ना अपने बारे में कि यार मेरा तो मार्क्स तो एवरेज मार्किंग कर दी थी, अदरवाइज मेरी कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। तो लाइक व्हाट हैपेंड टू योर 11th? 11th में तो तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तो वहां पे स्कोर कर लेते। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आपकी लगनी चाहिए हर एक पॉइंट के पीछे। बेटर है यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, है ना, ऐसी जगहों पे अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। अननेसेसरली आप डिफेंड करने जाओगे, मैं ग्रिल कर दूंगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? तो रीजनिंग सर, एबिलिटीज, या मंजू? अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी तो हमारी रीजनिंग एबिलिटी लो ही हो जाएगी ना, कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इतना अच्छे से सोच नहीं पाते थे। ठीक है, तो लाइक तब वो बच लाइक ये सी, आप गलती तो करोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइक गलती नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट करके लाइक वही गलती वापस रिपीट कर दो, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लाइक गलती से सीख नहीं रहे हो, वो प्रॉब्लम है। आप गलती कर सकते हो, गलती करना अलाउड है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो। आपने 12th के बाद भी ड्रॉप लिया, आपने तब भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, आपने ग्रेजुएशन के बाद भी ड्रॉप लिया, अभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो। ठीक है, आप लाइक 12th के अगर साथ एनडीए क्लियर नहीं कर पाए, अब आपका ग्रेजुएशन के साथ सीडीएस भी क्लियर नहीं हो रहा। तो आपको तो एनडीए से सीख लेनी चाहिए थी कि भाई एनडीए के लिए मैं जो थ्रेशोल्ड था वो मैं टच नहीं कर पा रहा था, तो मुझे सीडीएस के लिए अपने आप को लाइक अपस्किल करना पड़ेगा, मुझे उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि सीडीएस मेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो। है ना, उसके लिए आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं ले सकते, है ना। यस सर, इट मीन्स हमें मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने के बाद एक इम्प्रूवमेंट भी उनको बोलना पड़ेगा कि दिस इज द इम्प्रूवमेंट आपको लाइक जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, अगर ओके। आप लर्न नहीं कर रहे हो अपनी मिस्टेक से, तो फिर लाइक मतलब यू आर अ स्टेटस चेंजर और नॉट। ठीक है, मतलब अभी भी आप वही गलतियां तो नहीं कर रहे हो, अभी भी उसी जगह पे अटके तो नहीं हो, है ना, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट फेज। ठीक है ना। ओके सर। तो रीजनिंग एबिलिटी इज एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स एंड अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ पर आपके लाइक 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज रिसेप्टिविटी। व्हाट इज रिसेप्टिविटी? रिसेप्टिविटी इन्वॉल्व्स योर अटेंशन, योर इंटरेस्ट एंड योर ग्रास्पिंग पावर। ठीक है, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू योर रिसेप्टिविटी। ठीक है, आप अटेंटिवली लाइक चीजें, ठीक है, सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, किसी भी चीज को आप अटेंशन प्रॉपर दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। ठीक है, आपको पता ही है आजकल हमारा क्या सीन है। ठीक है, वो जो लाइक इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग आ गया है। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जब तक जल्दी से कोई चीज नहीं मिलेगी तब तक हमें मजा नहीं आएगा। गॉट इट? अब वो लाइक वो जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ऐसे करके बोला जाता था, अब उसमें कोई मजा नहीं है। गॉट इट? अब हमें चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अगर जल्दी रिजल्ट दिखेगा तो बढ़िया है, अदरवाइज अगर लाइक रिजल्ट में टाइम लगेगा तो मजा लाइक यू विल नॉट फील दैट। ठीक है ना, आपको जल्दी चाहिए हर एक चीज, तो यू आर एबल टू पे अटेंशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ठीक है, आप वो इंटरेस्ट बनाए रख पाते हो कि नहीं उस चीज में, है ना। ग्रास्पिंग पावर, हाउ फास्ट यू ग्रास्प थिंग्स, है ना, कितनी चीजें आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। आपको लाइक मैं पूरा एक सीआईक्यू बोला, ठीक है, एंड यू आर आस्किंग मी टू रिपीट दी सीआईक्यू अगेन। ठीक है, अटेंटिव नहीं हो आप, यू आर नॉट एबल टू लाइक आंसर इन वन गो। मैंने भी रिसेंटली मैंने ये जो अभी मॉक इंटरव्यू की बात कर रहा था, मैंने एक सीआईक्यू पूछा एजुकेशन वाला। उसमें मैंने बस फ्रेंड से रिलेटेड ये पूछा था कि हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड्स डू यू हैव एंड विच वन ऑफ देम यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। तो उसमें ना उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में ये भी बताना शुरू कर दिया कि लाइक लाइक व्हाई आई लाइक देम द मोस्ट एंड बैड बैड क्वालिटीज अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने तो बैड क्वालिटीज पूछी ही नहीं। ठीक है, फ्रॉम वेयर दिस बैड क्वालिटीज आर कमिंग, क्योंकि वो उसने रट्टा मार रखा हुआ था, उसने कहीं कोई पर्टिकुलर सीआईक्यू पढ़ा होगा, उसका रट्टा मार लिया होगा, तो उसके मुंह से निकल गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोल देना। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज रिसेप्टिविटी, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड ग्रास्पिंग पावर। सेकेंड इज इंक्वायरिंग एटीट्यूड। ठीक है, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, healthy curiosity to increase one's general awareness and experience in life. What is inquiring attitude? Healthy curiosity
टू इंक्रीज वंस जनरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, आपके सामने कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लाइक सामने जैसे ये एलएचबी कोच और लाइक आईसीएफ कोच है, यार इसमें क्या डिफरेंस होता है ना? ऐसा क्यों है? एलएचबी कोचेस आर लाइक जो भी इन दोनों में से कोई भी सेफर है तो क्यों सेफर है? ठीक है ना? तो वो अंदर से क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। अगर वो क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है, लाइक देन यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक दिस इन योर पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन आपने तो आज तक ये क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं अपने आप से। ठीक है, आपने अपने लाइक मेंटोर से नहीं क्वेश्चन पूछे, अपने टीचर से नहीं पूछे, तो आप वहां पर स्ट्रगल करोगे। ठीक है ना? तो वो चीज, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, हेल्दी क्यूरियोसिटी टू इंक्रीज वंस जनरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। यस हर्ष। So receptivity and inquiring attitude is under reasoning ability only. यस यस, दिस इज लाइक रीजनिंग एबिलिटी, है ना? Okay. ये पार्ट है आपके रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, Yes. रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी में आपके 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज अटेंशन, इंटरेस्ट एंड ग्रास्पिंग पावर। देन कम्स द इंक्वायरिंग एटीट्यूड। व्हाट इज इंक्वायरिंग एटीट्यूड? हेल्दी क्यूरियोसिटी टू इंक्रीज वंस जनरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, आपको लाइक अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, भाई ये लोग क्यों करते हैं, ऐसा कल्चर क्यों है, ट्रेडिशन क्यों है, ये लोग ये पर्टिकुलर फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आप मैसूर में रह रहे हो, ठीक है, आई एम लिविंग इन मैसूर फॉर पास्ट 4 years। मुझे अगर आइडिया ही नहीं होगा कि ये लोग ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, तो भाई ये मेरे को लाइक मेरे लिए गलत चीज है ना, क्योंकि मैं 4 साल से वहां रह रहा हूँ, मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि इनका ये त्योहार है, ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे करते हैं या क्या रीजन है इसके पीछे, है ना? वो सारी चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए निकल के, है ना? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके आसपास क्या हो रहा है, तो फिर मतलब क्या ही जिंदगी जी रहे हो। ठीक है ना? तो वो चीज है। इंक्वायरिंग एटीट्यूड इज हेल्दी क्यूरियोसिटी टू इंक्रीज वंस जनरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? एबिलिटी टू अराइव एट कंक्लूजन और जजमेंट बाय रैशनल थिंकिंग। ठीक है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया, उसके पीछे आपने रैशनल थिंकिंग लगाई है कि नहीं लगाई है। ठीक है, आपने पीसीएम लिया, पीसीएम इसलिए लिया क्योंकि सर मुझे एनडीए क्लियर करना था और एनडीए में मैथमेटिक्स एंड लाइक साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो मुझे वहां पर हेल्प मिलती, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर साइंस। मैंने बीए इसलिए लिया था क्योंकि सर मुझे पता था कि बीए अगर मैं लूंगा तो मुझे लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर सिलेबस ओवरलैप होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ। ठीक है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया, उसके पीछे आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। आपने जैसे आई गॉट प्लेस्ड इन 2 कंपनीज इन माय फाइनल ईयर, वन वाज इंडस टावर्स एंड वन वाज एलटीटीएस। ठीक है, तो मैंने एलटीटीएस क्यों चूज किया ओवर लाइक इंडस टावर्स? ठीक है, एक फील्ड जॉब थी, एक डेस्क जॉब थी। ठीक है, तो मैंने डेस्क जॉब क्यों ली? ठीक है, उसके पीछे आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो उससे लाइक आपका पता चलता है कि कैसे आपकी थॉट प्रोसेस काम करती है, माइंडसेट कैसे काम करता है ना? तो लॉजिकल रीजनिंग इज एबिलिटी टू अराइव एट कंक्लूजन और जजमेंट बाय रैशनल थिंकिंग। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द रीजनिंग एबिलिटी इज सीइंग एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप प्रॉब्लम्स की एसेंशियल्स को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना? एबिलिटी टू एनालाइज वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, मतलब अगर आपको लाइक जॉब के बीच में डिसाइड करना है, एक जॉब फील्ड जॉब है, एक जॉब डेस्क जॉब है, एक 9 to 5 है, एक एनी टाइम, जब भी बुला लिया जाएगा आपको काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो एक एक जॉब है जिसमें आप पर्टिकुलर लाइक इंटरवल के लिए आप छुट्टियां ले सकते हो। ठीक है ना? एक जॉब है जिसमें भाई कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, इरेगुलर शिफ्ट्स हैं और कुछ भी हो रहा है। गॉट इट? यहाँ पर क्या है, लाइक आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, 9 to 5 आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें, आप ये चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन। तो व्हाट इज रीजनिंग एबिलिटी? रीजनिंग एबिलिटी इज एबिलिटी टू ग्रास्प द essentials वेल and arrive at logical conclusions. And like this particular quality, mother of all OLQs, have 4 parts. First is receptivity. What is receptivity? Attention, interest, and your grasping power. 3 elements for receptivity. Second is inquiring attitude. Healthy curiosity to increase one's general awareness and experience in life. ठीक है, एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी वर्कशॉप ले रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग वर्कशॉप में बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार तुम्हें पूछना चाहिए जब भी कहीं जाते हो, है ना, कि क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है।
तो वो बैंगलोर जा रहा था एसएसबी देने। तो लखनऊ से उसने फ्लाइट पकड़ी, बोलता लाइक एयर हॉस्टेस से पूछता कि लाइक मैम क्या मैं अंदर लाइक कॉकपिट देख सकता हूँ? वो भी कंफ्यूज हो गई कि यार मतलब ऐसा अलाउड है क्या? ठीक है कि मतलब कोई पैसेंजर ऐसे बोल सकता है क्या? उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट हो चुका था। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि एक काम करते हैं, पहले मैं वो जो एयर हॉस्टेस थी उसने बोला कि मैं कैप्टन साहब से बात कर लेती हूँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो आप देख लेना। तो फिर वो कैप्टन के पास गई, उससे पूछा कि सर एक लाइक पैसेंजर है, वो बोल रहा है सर उसको कॉकपिट देखना है। ठीक है, तो उसने बोला यार पहली बार कोई रिक्वेस्ट किया ऐसी, है ना? तो उसको बुला लिया अंदर। ठीक है ना, वो जो लाइक पायलट एंड को पायलट थे उन्होंने बुला लिया अंदर, एंड फिर उनसे बात करने लगा। और वो बोलता कि बेटा तुम करते क्या हो, कहाँ जा रहे हो? बोलता सर मेरी एसएसबी है सर, बैंगलोर में एसएसबी देने जा रहा हूँ। एंड वो जो कैप्टन था वो रिटायर्ड था एयरफोर्स से, और जो को पायलट थी वो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिटायर्ड थी। ठीक है, तो वो फिर वो डिफेंस वाला लाइक वो चालू हो गया वहां पे। बोलता है भाई अलग ही एक्सपीरियंस था, सोचो लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो चीजें हो जाती हैं। गॉट इट? आपको लगेगा नहीं कि यार कौन ही बुलाएगा आपको कॉकपिट के अंदर, कौन दिखा देगा? कोई नहीं दिखाएगा, है ना? लाइक हम तो यही सोच के कभी पूछेंगे भी नहीं, लेकिन उस बंदे ने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया और उसको अंदर भेज दिया कि जाओ भाई तुम देख लो कॉकपिट कैसा होता है ना? तो वो इंक्वायरिंग एटीट्यूड, ठीक है, कि कैसे काम करता है आप ये लाइक कैसे ऑटो पायलट पे रहता है, ये सारी चीजें, है ना? हेल्दी क्यूरियोसिटी टू इंक्रीज वंस जनरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। Third point in reasoning ability is logical reasoning, ability to arrive at conclusion or judgment by rational thinking. And finally, seeing essentials of the problem, ability to analyze various factors. आप various factors को analyze कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के। यहाँ पे प्रॉब्लम से मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप परेशान होते हो, है ना? डे टू डे लाइफ में अगर कोई मतलब घर की साफ सफाई करनी है, सजाना है, तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव होगा तभी वो प्रॉब्लम कहलाएगी। गॉट इट? थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। थर्ड क्वालिटी इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। What is organizing ability? Organizing ability is ability to arrange the resources in systematic way. Ability to arrange the resources in systematic way and put to the best use of available means for achievement of the desired objective. I'm repeating the definition. What is organizing ability? Ability to arrange the resources in a systematic way and put to the best use of available means for achievement of the desired goals. आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपके पास सीडीएस की पाथ फाइंडर है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके पास नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपके पास फुल क्वेश्चन बैंक्स है। लेकिन आप इन रिसोर्सेज को अगर प्रॉपरली सिस्टमेटिकली यूज नहीं कर पाते हो, सबसे पहले आपने पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दिया, आपने टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर दी, और कॉन्सेप्ट गए तेल लेने। तुमने ना सीडीएस पाथफाइंडर देखी, ना नोट्स देखे, ना कॉन्सेप्ट्स कवर किए, लाइक डायरेक्टली आप क्वेश्चंस करने कूद गए। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अलाइन नहीं है, तो यू विल फेस डिफिकल्टी। ठीक है, आप प्रॉपर अगर लाइक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले आप सीडीएस पाथफाइंडर कवर करो, फिर थियरी कंप्लीट करो, फिर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज कंप्लीट करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद आप लाइक टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज का आपका लाइक पता चलेगा कि कहाँ पर हो, कितने पानी में हो, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक जो जो लाइक लगता है कि ये यार ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, उसको वापस सॉलिड करो। तो यही सब चीजें लाइक कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एबिलिटी टू अरेंज द रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक वे एंड पुट टू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल मीन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। वो सीडीएस हमारा क्लियर होना एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को सिस्टमेटिक तरीके से लाइक अरेंज करना आना चाहिए एंड यूज करना आना चाहिए। सिर्फ अरेंज करके रख दिया कि सबसे पहले मैं सीडीएस पाथफाइंडर से कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाऊंगा, फिर टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, फिर अपना एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को चेक करूंगा। लाइक ये तुम्हारे लाइक अरेंज तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था कि नहीं था, एग्जीक्यूशन था कि नहीं था। ठीक है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। एबिलिटी टू अरेंज द रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक वे एंड पुट टू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल मीन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव।
दिस इज आवर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, आप देखोगे, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आप डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ दिखा सकते हो। अगर आपकी सिस्टर की मैरिज है, आप वहां पर अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को हेल्प कर रहे हो, अपनी कजन की मैरिज में हेल्प कर रहे हो अपने रिलेटिव्स को, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर कजन्स मैरिज और सिस्टर्स मैरिज और ब्रदर्स मैरिज और समथिंग लाइक दैट। यू आर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल, ठीक है, एट योर होम। ठीक है, आप दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप एनिवर्सरी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सरप्राइज पार्टीज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, आप कोई क्रिसमस पार्टी या लाइक इवेंट ऑफिस में ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, कोई स्पोर्ट्स इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो लाइक आपकी ये जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर एकेडमिक पार्ट। हर जगह आपकी ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, और जब आपकी वो जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेक्शन है ना, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि आपने लाइक लाइफ में ये चीजें इम्प्लीमेंट करी हैं कि नहीं करी हैं। आपको ये लाइक मौका मिला है कि नहीं मिला है, ये चीजें फेस्टिवल लाइक जो कॉलेज फेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइज करने का, क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने का, डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने का, ये सारी चीजें, है ना। क्योंकि अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि रिसोर्सेज को अरेंज कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, लेकिन आपने परमिशन नहीं ली हॉल की एडमिनिस्ट्रेशन से, और सारा काम करा लिया, पूरा हॉल सजा दिया, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि भाई इन लोगों ने तो परमिशन ही नहीं ली, और उस दिन कोई और इवेंट भी होना था, तो फिर दोनों इवेंट खराब हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज ही नहीं की चीजें। सबसे पहले तुम्हें तो जाके वेन्यू और लाइक उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है, साइन वाइन लेना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हम लोग इस दिन लाइक इस टाइम पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है ना, आपने पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन तो कराया ही नहीं, तो काहे का इवेंट, काहे का फेस्ट, है ना। तो हर एक चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, so this is called your organizing ability. Ability to arrange the resources in a systematic way and put to the best use of available means for achievement of the desired objective. Then comes the power of expression. What is power of expression? Power of expression is ability to put across one's ideas with ease and clarity. भाई आपको ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती अपने आइडियाज को समझाने में। ठीक है, आप जीटीओ में ज्ञान तो अच्छा दे रहे हो, ठीक है, आप बता तो रहे हो सही आइडियाज, लेकिन सामने वाला ही नहीं समझ पा रहा कि फट्टा ऊपर रखना है या नीचे रखना है। ठीक है, रस्सी कहाँ बांधनी है, बीच में बांधनी है, पीछे बांधनी है। अगर आपके समझाने में, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो आप कहीं गलती कर रहे हो, है ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसके उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप तो ये देखो कि आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से आप ऐसा क्या बोल सकते हो जिससे कि वो चीजें लाइक क्लियरली उस बंदे को समझ आ जाए। ठीक है, आपको वो लाइक अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को अकॉर्डिंगली, है ना। तो व्हाट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन? एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज विद ईज एंड क्लैरिटी। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर जीटीओ, पीजीटी एंड एचजीटी। भाई आपका साइक, इट इज ऑल अबाउट योर आइडियाज। ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, अगर आप वहां पर डिफिकल्टी फेस करोगे, ठीक है, अगर हिंदी में हमें स्टोरी लिखने को बोले तो हम बड़ी शानदार स्टोरी लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर वही चीज लिखने की लिखनी पड़ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मदर टंग। हम लोग उतना फीलिंग और इमोशंस के साथ वो चीज नहीं लिखते जो हम हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा कि इंग्लिश में भी आप कंफर्टेबल हो जाओ इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात करने के लिए। गॉट इट? तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वांट यू ऑल टू डिलीवर लेक्चर इट ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि जितना आप बोलोगे, जितना आप प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है, उतना आप कंफर्टेबल होते जाओगे। ठीक है, आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम लोग लाइक रेगुलर लाइक डे टू डे लाइफ में इतनी इंग्लिश नहीं बोलते, अनटिल अनलेस हमारा ऑफिस का काम हो या कुछ हो, हमारे टेक लीड से बात करनी हो। मेरा तो जैसे मेरी टीम में ज्यादातर तो लाइक कर्नाटका से ही है, मेरा टेक लीड है, तो अब उनसे बात करूंगा तो मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। ठीक है, और वैसे तो वो लोग आपस में लाइक कन्नड़ा में बात कर लेते हैं जो लोग लाइक वहीं के, लेकिन व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, लाइक आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, विद माय क्लाइंट्स एज वेल, जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं हमारे, उनके साथ भी हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा,
ठीक है, तो आप उतना ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही सामने वाले को। तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये कौन है, इसको पीछे करो, किसी और को लेके आओ जो समझा पाए चीजें। ठीक है ना। तो लाइक आपका साइक में, इंटरव्यू में, लाइक आप बोलना कुछ चाहते हो इंटरव्यू में, लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तिलक का। ठीक है, इज अ बेस्ट कैडेट। ठीक है, वो लाइक बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन बोलता कि सर मैं घर पे जाऊंगा, मम्मी दूध दही मंगवाएंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उसके मुंह से गलती से निकल गया। ठीक है, मैंने बोला बेटा तू मतलब घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। तो उसको समझ लाइक क्लिक हो गया कि भाई ये क्या बोल दिया, मुंह से निकल गया। ठीक है, कि लाइक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकता हूँ मैं, है ना। और ये तब है जब उसके पापा इस दुनिया में अब नहीं है। ठीक है, फिर तो ये और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि भाई लाइक जो तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, एंड यू आर टेलिंग मी कि तुम वर्क फ्रॉम होम कोलकाता से कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ लाइक वर्किंग फ्रॉम योर लाइक रियल होम। ठीक है, क्योंकि आपको दूध दही लाना पड़ेगा, आपके घर पे अपनी मम्मी की हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत ही नेगेटिव साउंड करता है। ठीक है ना। तो वही चीज है, बोलना वो भी नहीं चाहता था ये, लेकिन प्रेशर में निकल गया मुंह से। फिर उसके बाद अब वो बैक ट्रैक कर भी नहीं सकता यहाँ पे, अब वो क्या ही बोल लेगा। अब वो कुछ भी बोल ले, वो कवर नहीं कर पाएगा इस चीज को। गॉट इट। तो यही चीज है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जो आप बोलना चाहते हो, जिस इंटेंशन के साथ बोलना चाहते हो, वो सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ वो कुछ और रहा है, बोल आप कुछ और रहे हो। ठीक है ना, जैसे हरियाणवी जो लोग होते हैं अपने। ठीक है, वो लाइक प्यार से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लाइक मार ही देगा भाई। ठीक है ना, अभी हाथ छोड़ देगा। ठीक है, लगा देगा एक हाथ। लेकिन वो प्यार से ही बात कर रहे हैं, उनका बात ही करने का तरीका ऐसा है। ओके, मेरे जितने भी हरियाणा के दोस्त हैं, ठीक है भाई, इतना प्यारा दोस्त है मेरा, लेकिन उसकी बातें ऐसी है कि उसकी आवाज ही ऐसी है कि डर जाएगा कोई। ठीक है, कि भाई ये मार तो नहीं देगा ना। लाइक मैंने बोला नहीं नहीं भाई, ये ऐसा ही है, इसकी आवाज ही ऐसी है। ओके, लैंग्वेज ही ऐसी है। ओके, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज। ठीक है, विद ईज एंड क्लैरिटी। फैक्टर टू, व्हाट इज फैक्टर टू? फैक्टर टू इज सोशल एडजस्टमेंट। फैक्टर टू इज सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब फैक्टर टू की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे फर्स्ट क्वालिटी है सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एबिलिटी टू अडेप्ट टू सोशल एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वेल विद पर्सन एंड सोशल ग्रुप्स। व्हाट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी? सोशल अडेप्टेबिलिटी इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू सोशल एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वेल विद पर्सन एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, आप नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। नए लोगों से आपको घुलने मिलने में दिक्कत तो नहीं होती। नए सोशल ग्रुप्स पे लाइक आप जाते हो, अवॉइड तो नहीं करते हो कि यार ये कौन आ गए भाई, हमारा क्या लेना देना इनसे। तो ये अगर आप देखोगे, आपको एसएसबी में ही दिख जाएगा। साउथ के जो कैंडिडेट्स होंगे अपना ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, वो अपना आपस में लगे रहेंगे। नॉर्थ वाले अपना ग्रुप बना लेंगे, और वो एक दूसरे के मजे लेंगे। ठीक है, नॉर्थ वाले साउथ के मजे लेंगे, साउथ वाले नॉर्थ के मजे लेंगे। ठीक है ना। और इनमें से कोई एक बंदा अगर लाइक चेन ब्रेक करना चाहे, और मतलब नॉर्थ वाला साउथ में जाके बैठ जाए अपने दोस्तों के साथ, तो उसके वो मजे ले लेंगे। अब नॉर्थ वो साउथ वाला इधर आ जाए, तो वो चीज है। ठीक है, तो लाइक आप वो चेन ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक ऐसे ग्रुप में शामिल होने में जो लाइक आपसे थोड़ा अलग है। ठीक है ना, आप वहां पे एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, है ना। लाइक आप, लाइक आई एम फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, बट मेरा तो जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो मैं तो हर सिटी में रहा हूँ, हर लाइक डिफरेंट सिटीज में रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। है ना, संगरूर में, अमृतसर में, ग्वालियर में, ठीक है, पुणे में, ठीक है, मैसूर में, तो लाइक धनबाद हो गया। और तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दार्ज लाइक वहाँ पे क्या है, कालिंगपोंग। ठीक है, जो डोकलाम के पास है। तो मुझे तो सारे लाइक स्टेट्स का और रीजन का कल्चर का आइडिया है, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज मुझे पता है भाई हर 3 से 4 साल में मुझे नए दोस्त बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं नहीं अब मैं जो मैंने बचपन में दोस्त बनाया था उसी के साथ जिंदगी काट दूंगा, क्योंकि नहीं काट सकते। आपको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे हर 3 4 साल में, तो आप वो अडेप्टेबल हो कि नहीं हो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू सोशल एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वेल विद पर्संस एंड सोशल ग्रुप्स। This social adaptability consists of 4 points. First is social intelligence. What is social intelligence? Social intelligence is ability to get along well with superiors, equals, and subordinates.
What is social intelligence? Social intelligence is ability to get along well with superiors, equals and subordinates. ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपका सीनियर है, जूनियर है या आपके बराबरी वाला है। ठीक है, आपकी सबके साथ बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीनियर की चाट रहे हो, ठीक है, जूनियर की बजा रहे हो और साथ वालों की ऐसी की तैसी कर रखी है। ठीक है, आपका नेचर अगर है तो सबके साथ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का डेजिग्नेशन देख के अपना नेचर चेंज कर लेते हो कि जूनियर आया तो इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, बराबरी वाला आया तो चल ठीक है यार है अपना, और लाइक सीनियर के सामने तो बिल्कुल सर आप बोलो क्या करना है, ठीक है ना, कर देंगे, हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? सोशल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद सुपीरियर्स, इक्वल्स एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर्स अगर आपके बारे में कुछ बातें करे तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपके जूनियर्स अगर आपके बारे में कुछ बोले आपके पीठ पीछे तो वो भी अच्छी बात ही करे। ठीक है, ये नहीं कि जूनियर गाली दे रहा है पीछे, सीनियर बोल रहा है एक नंबर का चट्टू आदमी है ये, ठीक है ना, छोड़ता ही नहीं है। तो लाइक आप मानो या ना मानो, सीनियर को पता है तुम कैसे हो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि भाई सीनियर को तुम लाइक बटरिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई सीनियर को सब पता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। ठीक है, उसको पता है जूनियर के साथ तुम कैसे बिहेव करते हो। ठीक है, जूनियर को पता है ये सीनियर के साथ कैसे बिहेव करता है। और जिस बंदे का एटीट्यूड और लाइक बिहेवियर लाइक ये देख के चेंज हो जाए कि सामने वाले का डिजिग्नेशन क्या है, तो समझ जाओ उसका क्या लाइक वो बनेगा। ठीक है ना, प्रोफाइल कैसी बनेगी। तो वो चीज है। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? सोशल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद सुपीरियर्स, इक्वल्स एंड सबऑर्डिनेट्स। देन कम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड you have towards others? Attitude towards others is ability to oneself, like ability to put oneself in other man's position so as to appreciate justifiable difficulties and render help. ठीक है, what is like attitude towards others? Ability to put oneself in other man's position so as to appreciate justifiable difficulties and render help. ठीक है, आपको पता चला आपके दोस्त के साथ कुछ हो गया है, ठीक है, तो आप उसको लाइक उसकी जगह अपने आप को रख के उसकी परेशानियों को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आपको बस अपनी परेशानियां दिख रही हैं, सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है उसको उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बात को लेके बैठे हो, भाई उसके साथ आपसे बहुत बड़ा कांड हो चुका है, आपको जाके उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपने दुख को भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो लाइक अगर आप लाइक अपने आप को दूसरे के लाइक पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आप दूसरे की पोजीशन में रख ही नहीं पा रहे हो, तो आप दूसरे का दर्द क्या समझोगे, है ना। ठीक है, आप कल को जवानों की लाइक छुट्टियां सेंक्शन करोगे, ठीक है, आप इंटरव्यू इंटरव्यू लोगे और आपको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है जिंदगी में, तो आप काहे की एम्पैथी दिखाओगे। ठीक है, तो बोलेगा ये तो रोज का नाटक है इनका, छुट्टी चाहिए इनको, है ना। तो वो चीज वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए टू पुट oneself इन अदर मैन्स पोजीशन सो एज टू अप्रिशिएट जस्टिफाइबल डिफिकल्टीज, वो लोग किस डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। ठीक है, एंड टू रेंडर हेल्प। जैसे आप लाइक कल को कमीशन हो गए फोर्सेस में, आर्मी में स्पेशली, आर्मी में क्या होता है, आपको अटैच कर दिया जाता है लाइन लाइन के साथ 3 महीने तक। तो मेरा भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, सुरेश, ठीक है, ही रिसेंटली गॉट कमीशन, तो अभी इसको अटैच कर दिया लाइन में। ठीक है, तो अब लाइन में इसको अटैच क्यों कर दिया जवानों के साथ, ताकि लाइक पता तो चले इसको कि भाई लाइक जवान क्या फेस करते हैं सुबह शाम। ठीक है, इन लोगों को अगर लेट हो जा रहा है तो क्यों हो जा रहा है। ठीक है, लाइक इनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किन रिसोर्सेज के साथ ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। लाइक लाइक ऑफिसर मैच तो भाई इनको छूने नहीं देते पहले 3 महीने। ये जो न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं इनको अफसर मैच लेके जाने नहीं दिया जाता, और अगर कोई जाएगा, ठीक है, अगर एक न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर कहीं ऑफिसर मैच पहुंच गया तो ऑफिसर ही इसके मजे ले लेंगे, बोलेंगे इधर आओ बेटा नाच के दिखाओ। ठीक है ना, नचवा रहे नए ऑफिसर को, बोल रहे कि बेटा ये लो दारू की बोतल रखो अपने सर पे और नाच के दिखाओ। बोल रहा सर मैं कमीशन्ड ऑफिसर हूँ कि क्या हूँ, ये क्या बनाने के लिए भेजा था मुझे और क्या करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स? ability to oneself, like ability to put oneself in other man's position so as to appreciate justifiable difficulties and render help। आप सामने वाले की तभी हेल्प कर पाओगे अच्छे से जब आप उसको लाइक अपने आप को उसकी जगह पे आप रख के देख सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आप को वहां पर नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब है आप ज्यादा अच्छी हेल्प कर भी नहीं पाओगे।
बिकॉज आपको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये जो सिचुएशन है इसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, वो डेप्थनेस आप लाइक समझ ही नहीं पा रहे हो उसकी, है ना। थर्ड पॉइंट इज टैक्ट। व्हाट इज टैक्ट? स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स। स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स। तो स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स, व्हाट इज स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स इज, भाई ठीक है, आप कोई काम करवाना चाहते हो, ठीक है, तो दो तरीके हैं। ठीक है, या तो प्यार से करवा लो या गाली गलौज दे के करवा लो। गॉट इट। तो अगर आप गाली गलौज दे के करवाओगे तो आपका ही वो खराब होगा। ठीक है, लाइक काम तो वो कर देगा सामने वाला आपका, ठीक है, लेकिन आपका जो लाइक प्रोफाइल बनेगा, ठीक है, लोग आपको जो लाइक असेस करेंगे कि भाई ये कैसा इंसान है, ठीक है, आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं करेगा, क्योंकि आप जो चीजें सीधे मुंह से कह सकते थे आपने लाइक बदतमीजी से करवाया। गॉट इट। तो वो आप सामने वाले की फीलिंग्स को लाइक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना, एक्चुअली मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई बंदा कोई डिफिकल्टी में है तो आप उससे बदतमीजी करोगे तो लाइक उसे और भी ज्यादा बुरा फील होगा। ठीक है, अगर काम करवाना है तो वो काम करवाया जा सकता है बिना बदतमीजी के भी, बिना गाली गलौज के भी। वैसे तो फौज में गाली गलौज ही लाइक मेन चीज होती है। ठीक है, बिना गाली गलौज के तो कुछ काम ही नहीं होता, है ना। जब अकेडमी जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो बस गाली गलौज में ही बातें करते हैं, है ना, कुछ लाइक नॉर्मल शब्द है ही नहीं। गॉट इट। तो स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग, सामने वाले की फीलिंग्स को आप स्किलफुली मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। गॉट इट। एंड फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी। व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी? एडजस्टमेंट टू वेरियस सोशल सिचुएशंस। ठीक है, आप सोशल सिचुएशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल सिचुएशंस आ गई। ठीक है, आप कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, है ना, आप नए लोगों के साथ हो, नया सोशल ग्रुप है, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप लाइक आपको आपके दोस्त पहली बार, ठीक है, क्लब लेके चले गए और आप जिंदगी में कभी क्लब नहीं गए हो, तो आप अकॉर्डिंग टू द लाइक एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि भाई आपको लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, निकलो यहाँ से। तो वो सारी चीजें। What is social adaptability? Social adaptability is ability to adapt to social environment, adjust well with persons and social groups. Social adaptability में हमारे चार parts हैं. First is social intelligence. What is social intelligence? Ability to get along well with superiors, equals, and subordinates. Second point is attitude towards others. What is attitude towards others? Ability to put oneself in other men's position so as to appreciate justifiable difficulties and render help. Empathy, in short. ठीक है. Tactfulness. What is tactfulness? स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, सामने वाले को बिना हर्ट करे काम करवा लेना, दिस इज कॉल्ड स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, सामने वाले को लाइक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे किसी को दुखा नहीं सकते, दिल नहीं दुखा सकते किसी का, कि भाई मैं तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ। सीधा बोलते हो ये बोलने के चक्कर में तुम लाइक क्या कर रहे हो सामने वाले की फीलिंग्स के साथ, ठीक है, वो चीज गलत है। Then comes the adaptability, adjustment to various social situations. ठीक है, this is your social adaptability. Sixth OLQ is cooperation. Sixth OLQ is cooperation. What is cooperation? Attitude to willingly participate in harmony with others in a group. What is cooperation? Cooperation is attitude to willingly participate in harmony with others in a group. ठीक है, and cooperation consists of 2 points. First is joint efforts and second is spirit, team spirit. ठीक है, कॉपरेशन इज एटीट्यूड टू विलिंगली पार्टिसिपेट इन हार्मनी। ठीक है, एटीट्यूड टू विलिंगली पार्टिसिपेट इन हार्मनी विद अदर्स इन अ ग्रुप। इट कंसिस्ट ऑफ 2 points. फर्स्ट इज जॉइंट एफर्ट्स एंड सेकंड इज टीम स्पिरिट। ठीक है, आप ग्रुप में वो लाइक एलिमेंट आप ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि सब लोग साथ में मिलके, ठीक है, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ठीक है, चीजें लाइक टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो लाइक जॉइंट एफर्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, कि मिलके हम लोग जल्दी ही कर पाएंगे। गॉट इट। व्हाट इज कॉपरेशन? एटीट्यूड टू विलिंगली पार्टिसिपेट इन हार्मनी with others in a group, consists of 2 points. That is, first is joint efforts,
एंड सेकंड इज टीम स्पिरिट। वो टीम स्पिरिट वाली जो भावना है, ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं है कि सब काम अकेले ही करना पसंद है, ठीक है, वन मैन आर्मी टाइप, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं दूसरों को दूंगा, क्या पता वो उस क्वालिटी का करे ना करे। ठीक है, आपने नाम के लिए 4 लोगों को अपने ग्रुप में तो ऐड कर लिया, लेकिन आपको पता है कि भाई ये 4 लोग किसी काम के नहीं है, सारा काम मुझे ही करना है। तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा बिलीव दिखाना पड़ेगा दूसरों में। ठीक है ना, उन लोगों से लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार लाइक आप भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। ठीक है ना, वी आर अ टीम, एंड वो टीम स्पिरिट वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर भी, और आप सामने वाले में वो लाइक करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है, सामने वाले में वो टीम स्पिरिट वाली फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है ना, जॉइंट एफर्ट्स, ठीक है कि नहीं है, कि तुम ही सारा कुछ अकेले कर दे रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज कॉपरेशन? कॉपरेशन इज एटीट्यूड टू विलिंगली पार्टिसिपेट इन हार्मनी विद अदर्स इन अ ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज जेफ जॉइंट एफर्ट्स एंड सेकंड इज टीम स्पिरिट। सेवेंथ OLQ is sense of responsibility. Seventh OLQ is sense of responsibility. Sense of responsibility enables person to be dependable, willingly discharge his obligations. Sense of responsibility enables person to be dependable and willingly discharge his obligations. आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो वो ये भी तो देखना चाहेंगे कि यार आज तक आपने कभी कोई लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लाइक एक्ट किया है, जो आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप सीनियर अंडर ऑफिसर थे एनसीसी में, आप हाउस कैप्टन थे स्कूल में, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे कॉलेज में, मेस सेक्रेटरी थे हॉस्टल में, ठीक है, कल्चरल हेड थे, कल्चरल साइनॉट के। ठीक है, तो आपने ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको किसी ने दी है, तो इसका मतलब है कि आप डिपेंडेबल इंसान हो। आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया हुआ है पहले भी। दैट्स वाई आपको इतना बड़ा लाइक डेजिग्नेशन दिया गया है। कोई ऐसे ही नहीं आपको दे देगा, कोई आपको ऐसे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना देगा, कोई आपको ऐसे ही हाउस कैप्टन नहीं बना देगा। आपको फुटबॉल टीम का अगर कैप्टन बनाया गया है, तो इसीलिए बनाया है क्योंकि आप लाइक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, आप अच्छा खेलते हो, आप में वो लाइक एबिलिटी है कि आप टीम को लाइक प्रेशर सिचुएशन में लाइक निकाल के ले जाओ। ठीक है ना, तो वो चीजें। तो व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनेबल्स पर्सन to be dependable and willingly discharge his obligations। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज आ जाएंगी? फर्स्ट इज सेंस ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज सेंस ऑफ ड्यूटी? ठीक है, आप हाउस कैप्टन हो, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, तो आपको इस ड्यूटी का लाइक रियलाइजेशन है कि लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है ना, अगर आपको सीडीएस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको लाइक रियलाइजेशन है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर यू। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम लोगों को वो नहीं रहता, क्योंकि लाइक हमारे पास और क्या काम है। वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक अदर देन दिस हमारे पास और कुछ काम भी नहीं है। लेकिन हमारे क्लियर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें वो सेंस ऑफ ड्यूटी वाली फीलिंग नहीं है कि दिस इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, एंड जस्ट नॉट स्टडी, स्टडी लाइक सो दैट वी कैन क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। वो सेंस ऑफ ड्यूटी की कमी, लैक ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है ना, तो फर्स्ट इज सेंस ऑफ ड्यूटी, सेकंड इज डिसिप्लिन। है ना, मैं एक लाइक वीडियो देख रहा था, पता नहीं उसका नाम क्या है, किपचोगे करके है। ठीक है, किसी ने सुना होगा, बहुत बढ़िया लाइक मैराथन रनर है। ठीक है ना, किपचोगे, तो वो लाइक उसने एक बहुत बढ़िया कोट बोला था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। उसने बोला था कि जो डिसिप्लिन्ड वंस है ना, वही फ्री है। ठीक है ना, जो अपने मूड के स्लेव्स हैं, कि भाई आज मन नहीं कर रहा, आज लेक्चर नहीं दूंगा। ठीक है, आज मन नहीं कर रहा, सुबह 5 बजे नहीं उठूंगा। तो ये जो मूड के जो लाइक स्लेव्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट फ्री, दे आर स्लेव्स ऑफ देयर मूड। जो डिसिप्लिन्ड है कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। ठीक है ना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे लेक्चरेट देना है तो देना है, चाहे मैंने प्रिपेयर किया हो नहीं किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे सेशन अटेंड करना है तो करना है। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक जो जब मैंने ये कोट सुना था, तो अलग ही लेवल का लाइक लगा था। ठीक है ना, कि ओनली डिसिप्लिन्ड वंस आर फ्री इन लाइफ।
ठीक है, और जो अपने मूड के लाइक हिसाब से चलते हैं, दे आर स्लेव्स ऑफ देयर मूड। ठीक है, कि मूड ने बोला आज नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं करना लेक्चरेट नहीं करेंगे। ठीक है, सेशन स्किप हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं पार्टी करने। ठीक है, जैसे फ्राइडेज को क्या होता है, व्हेन आई वाज लिविंग इन मैसूर, ठीक है, फ्राइडेज को क्या होता था, फ्राइडेज को हमारा लाइक अब वीकेंड्स आ रहे हैं, तो फ्राइडेज को जनरली हम लोग बाहर जाते थे मूवी वूवी देखने। लाइक सिंस 2023 नवंबर आई स्टार्टेड कंडक्टिंग दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स। ठीक है, उसके बाद मेरा तो लाइक रात को 9 से 11, 10, साढ़े 10, 11 ऐसे ही चलता था। तो मैंने तो अपना छोड़ दिया, मैं तो नहीं मैं तो अब उस पार्टी का लाइक हिस्सेदार नहीं बन सकता। ठीक है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक सेशन एक दिन के लिए तो छुट्टी दे ही सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है। मैंने बोला नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है ना, मुझे इसी में मजा आता है। गॉट इट। तो लाइक वो आपको सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, है ना, मुझे तो लगता है दिस इज माई ड्यूटी, तो लाइक मैं तो करवाऊंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक कोई आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने तो अपनी वर्कशॉप में दो दो तीन तीन बच्चों को भी पढ़ाया है मॉर्निंग में 5 to 7:30 AM। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वर्कशॉप में कितने लोग हैं। प्रीवियस वर्कशॉप में मेरे 80 बच्चे थे, 80 कैंडिडेट्स वर देयर, और इस वर्कशॉप में 25 है, और लाइक एक दिन पहले यहाँ पर 10-12 थे, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी अगर आपको होगी तो आप करोगे। ठीक है, एंड लाइक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ इफ यू ऐड डिसिप्लिन, तो नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। गॉट इट। Sense of duty, then discipline, and then comes the adherence to social and moral norms. क्या आप सेशन लाइक सोशल और मॉरल नॉर्म्स, ठीक है, फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, व्हेन यू आर लाइक अचीविंग और लाइक यूर लाइक परस्यूइंग योर गोल्स, है ना। अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, सर डेविड गॉगिन, नहीं सेवर वो डेविड गॉगिन नहीं है। ठीक है, वो इलियट किपचोगे करके है, वो डिफरेंट है। डेविड गॉगिंस को मैं जानता हूँ, डेविड गॉगिंस ने नहीं बोला। एंड फोर्थ इज सेल्फ कंट्रोल। भाई आप सुबह सुबह, अब सर्दियां आ रही हैं, सुबह तुम्हारा मन बहुत करेगा कि भाई कौन उठेगा, भाड़ में जाए। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है, चुपचाप आराम से 9, 10, 11 बजे देखेंगे और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों इतनी मेहनत करनी, मन तो यही करेगा। लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल आप में है कि नहीं है। आपके दोस्त बोल रहे हैं भाई आज चल शाम को चलते हैं, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए, लेकिन तुम्हारा 9 बजे सेशन है। बोला यार सेशन तो होता रहेगा, आज एक दिन तो मैंने दोस्त के साथ पार्टी कर ही सकता हूँ, तो तुम दोस्त के साथ चले गए। ठीक है ना, तुम्हारे लाइक तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा, तुम ये सेशन नहीं छोड़ोगे। ठीक है ना, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करके जाओगे। तो ये सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लाइक आप में ये सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं है। वही, आप लाइक अपने मूड के स्लेव्स तो नहीं हो। ठीक है, आपका मूड किया तो ये कर दिया, मूड किया तो वो कर दिया, है ना। वो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनेबल्स पर्सन टू बी डिपेंडेबल। या आप डिपेंडेबल हो, सोचना कि आपके आप पे लोग भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप पे कोई ट्रस्ट दिखा रहा है, तो लाइक आप उस ट्रस्ट को, ठीक है, बरकरार रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनेबल्स पर्सन टू बी डिपेंडेबल एंड willingly discharge his obligations. First is sense of duty, second is discipline, third is adherence to social and moral norms, and fourth is self control. ठीक है, सेल्फ कंट्रोल इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे हो गए फैक्टर 2। देन कम्स द फैक्टर 3। व्हाट इज फैक्टर 3? फैक्टर 3 इज लाइक रिलेटेड टू सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस, अब इसमें सबसे पहला आता है इनिशिएटिव। ये एबिलिटी टू ओरिजिनेट एक्शन एंड सस्टेन इट। एबिलिटी टू ओरिजिनेट एक्शन एंड सस्टेन इट। ठीक है, पहली बात तो इनिशिएटिव लेने में ही सबसे बड़ी कठिनाइयां होती है। पहला स्टेप लेना सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई है जिसने अभी तक फर्स्ट लेक्चर डिलीवर नहीं किया है, तो याद रखना कि जब तक आप पहला लेक्चर डिलीवर नहीं करोगे ना, तब तक वो चिंगारी नहीं आएगी। ठीक है, वो जो लाइक आग है, ठीक है, वो भड़कना तभी स्टार्ट करेगी जब तुम पहला स्टेप लोगे। तो वो इनिशिएटिव तुम्हें लेना पड़ेगा। एंड अगर तुमने इनिशिएटिव ले लिया, तो इनिशिएटिव तो बहुत लोग लेते हैं, कि आप सस्टेन कर पाओगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट देखना जाके, ठीक है, एससीओ की देख लो, सीजीएल की देख लो, ठीक है, पूरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है यूट्यूब पे टीचर्स ने, ठीक है, और वो भी वही लाइक प्लेलिस्ट डाल रखी है जो उनकी एप्लीकेशन पे वो पढ़ाते हैं रियल में। मतलब तुम्हें एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम यूट्यूब की वो प्लेलिस्ट देख लो। लेकिन उस प्लेलिस्ट के लाइक पहली वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज है और लास्ट के वीडियो पे 10,000 व्यूज है। तो इनिशिएटिव तो बहुत लोग ले रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर उसके बाद इनिशिएटिव लेने के बाद लाइक यू आर एबल टू सस्टेन इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, और टिल यू अचीव योर लाइक गोल्स और एम्स। ठीक है, आप अपना एम और गोल जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक वो सस्टेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो व्हाट इज इनिशिएटिव? एबिलिटी टू ओरिजिनेट एक्शन एंड सस्टेन इट। अब इनिशिएटिव के भी 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है ना। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप लोगे, एक बार हेजिटेशन खत्म होगा। ठीक है, अब जैसे ललित है, ललित ने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, अब इसका हेजिटेशन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। चाहे गलती करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लेक्चर डिलीवर करना ही पड़ेगा। जब आप अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दोगे ना, फिर काम बनेगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को ऑप्शन दोगे कि यार नहीं यार ठीक है, लेक्चर कोई वो मैंडेटरी तो है नहीं, ठीक है, तो लाइक मैं किसी को फोर्स भी नहीं करूंगा, मैं बस पूछ सकता हूँ, है ना, कि दीपक वुड यू लाइक टू डिलीवर लेक्चर इट और नॉट। अब मैं ये थोड़ी सुनाने थोड़ी लग जाऊंगा दीपक को। ठीक है, वो उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी है। अगर उसको लगेगा कि उसके लिए ये करना जरूरी है और इसका यही एक लौता लाइक मकसद है, अभी राइट नाउ दीपक का मेन एम यही होगा, एसएसबी क्लियर करना है। तो अगर उसको रियलाइजेशन होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का, तो वो लेक्चर डिलीवर करेगा। मैं जबरदस्ती क्यों करूं? ठीक है, मेंटोरशिप तो मैं बहुत लोगों की कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ी रेकमेंड हो जाएंगे यार। ठीक है, जो लोग मेहनत करेंगे वो रेकमेंड होंगे। और आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मेजर जो लाइक एफर्ट्स है वो कैंडिडेट के ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको बस डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, अगर उस डायरेक्शन में आप चल ही नहीं रहे हो, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट? ठीक है ना। तो एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देन एक्ट फर्स्ट इन न्यू और सब्सिक्वेंटली इमर्जिंग सिचुएशंस। ठीक है, एक्ट फर्स्ट इन न्यू और सब्सिक्वेंटली इमर्जिंग सिचुएशंस। जैसे आपसे ना एसएसबी में जीटीओ बोलेगा कि कोई डेमो करके दिखा सकता है क्या, कोई ये रस्सी बांध के दिखा सकता है क्या, या लाइक तुम में से किसी ने एक गलती की है जी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में, तो तुम में से कोई भी एक बंदा वापस जाके रिपीट करके आओ। तो तुम ये मत सोचो कि भाई मैंने तो गलती नहीं करी, मैंने तो कोई फाउल नहीं किया, मैं क्यों जाऊं पीछे। ठीक है, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। बिना सोचे समझे भाग जाओ और वो टास्क कंप्लीट करके आ जाओ, लेकिन एक बार पीछे टास्क जरूर देख लेना। ऐसा कोई टास्क मत देख लेना कि भाई तुमने पीछे देखा नहीं और लाइक तुम भागते हुए चले गए, आप पहुंच ही नहीं पा रहे ऊपर, बोल रहे हो भाई ये तो गलत टास्क हो गया, ये तो डबल वॉल हो गई, ठीक है, सिंगल वॉल हो गई, है ना। तो ऐसा कोई टास्क मत लेना जो तुम अकेले ना कर पाओ। ऐसा भी इनिशिएटिव मत लो कि तुम खुद ही जाके फंस जाओ, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, है ना। Act first in new or subsequently emerging situations. And third point is right direction. ठीक है, आपने स्टेप भी ले लिया, अब सब्सिक्वेंट लाइक इमर्जिंग सिचुएशंस में भी आप लाइक एक्टिंग फर्स्ट। उसके बाद लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइक यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन है, जो पाथ है, वो करेक्ट है कि नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली यू आर एबल टू सस्टेन इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। ठीक है ना। आपको बीच में लगेगा जब आप ये एसएसबी की तैयारी कर रहे होगे ना, वर्कशॉप कर रहे होगे, ठीक है, वैसे तो आई एम टेलिंग यू लाइक अभी आज ये वर्कशॉप स्टार्ट हुई है, आफ्टर 30 डेज ये वर्कशॉप कंप्लीट भी हो जाएगी ना, तुम्हें लगेगा कि भाई कल ही तो ये स्टार्ट हुई थी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऑल तो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है ये वर्कशॉप। ठीक है, हेक्टिक होने वाला है, सुबह के 2-3 घंटे, शाम के 2 घंटे, लाइक हेक्टिक रहेगा। लेकिन तुम लाइक आफ्टर 1 मंथ ऑफ वर्कशॉप तुम्हें लगेगा कि भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे कब टाइम बीत गया 1 महीने का। ठीक है, 2-2 सेशन हमने कर लिए, तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा कि ऐसा हो गया। तो लाइक यू हैव टू सस्टेन इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यही चीज है। ठीक है, टिल योर एसएसबी यू हैव टू प्रैक्टिस डिलीवरिंग लेक्चर। अचानक से ये जो फ्लुएंसी ब्रेक होती है ना कि यार एसएसबी आएगी तभी हम लोग करना शुरू करेंगे,
ठीक है, जब तक एसएसबी क्लियर नहीं हो जाती तब तक लगे रहो। ठीक है, लेक्चर डिलीवर करते रहो। ठीक है, अपना प्रैक्टिस कर लो, खुद के इवनिंग मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करो। ठीक है, तो व्हाट इज लाइक इनिशिएटिव? इनिशिएटिव इज एबिलिटी टू ओरिजिनेट एक्शन एंड सस्टेन इट। फर्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। सी, एसएसबी में इनिशिएटिव लो, लेकिन एकेडमी में नेवर एवर टेक इनिशिएटिव्स। ठीक है, एकेडमी में तो भाई पीछे बन के रहो। ठीक है ना, लाइन में सबसे आखिरी में जाके लग सकते हो तो वहां लग जाना, क्योंकि जो सबसे पहला डेमो पीस बनेगा उसको बजाया जाएगा। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा कूदेगा उसे रगड़ दिया जाएगा। तो बेटर है कि ये जो इनिशिएटिव वाला पॉइंट है ये सिर्फ अपनी एसएसबी में दिखाओ। एकेडमी में दिखाओगे तो तुम्हें लाइक फिर रोना आ जाएगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, रो रहे हैं, अभी गए हैं, अक्टूबर में ही गए हैं। ठीक है ना, अभी से ही रोना शुरू कर दिया, बोल रहे हैं भैया क्या हो रहा है ये, यहाँ ऑफिसर बनने आए थे, ये क्या बना रहे हैं हम लोग को। तो एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, देन एक्ट फर्स्ट इन न्यू और सब्सिक्वेंटली इमर्जिंग सिचुएशंस। थर्ड इज राइट डायरेक्शन, एंड फोर्थ इज यू आर एबल टू सस्टेन इट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन भी होनी चाहिए, आप सस्टेन भी कर पा रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट होने चाहिए आपके इनिशिएटिव में। ठीक है ना, एसएसबी की तैयारी में बीच में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई सिलेबस हो एसएसबी का कि लाइक अब आपने ये पढ़ लिया तो अब तो आपका कवर हो गया। भाई ये तो लाइक इम्प्रोवाइजिंग है। ठीक है, आपको चीजें इम्प्रोवाइज करते रहनी पड़ेंगी जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस इन लाइफ बढ़ता जाएगा, तो आपको अपनी चीजें उसी लाइक अकॉर्डिंगली आपको लाइक मोल्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो बीच में आपको लगेगा कि यार ये कर क्या रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये जिंदगी में। ठीक है, बट यू हैव टू सस्टेन इट टिल योर लाइक गोल। है ना, नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, particularly those that are unfamiliar. ठीक है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, particularly those that are unfamiliar. अनफेमिलियर सिचुएशंस को आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आपने देखा होगा जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या आने वाला है, उसको वो अलग ही लेवल पे अलग ही हो रहा है उसका। ठीक है ना, तो वो उस लेवल पे आपको रखना है कि भाई कोई भी आ जाए, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं लाइक संभाल लूंगा। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, ही लाइक ही वाज वर्किंग अलोंग विद मी, ठीक है, इन एलएनटी ओनली। तो लाइक इन जनवरी ही रिजाइन। ठीक है, तो उसने जनवरी में रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? लाइक बिकॉज फॉर लास्ट 6 मंथ्स ही वाज वर्किंग फॉर लाइक वन प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके यूरोपियन क्लाइंट्स थे। ही वाज वर्किंग like like he used to go to office at 9 a.m. and used to come next day 5 a.m. in the, like 5 a.m. ठीक है, सुबह जाता था 9 बजे, अगले दिन के सुबह 5 बजे आता था, और वापस 9 बजे उठता था, वापस चला जाता था। मतलब ऐसी की तैसी हो गई थी उसकी। ठीक है, बट डेफिनेटली उसका लाइक एक्सप्लॉइटेशन हुआ उस प्रोजेक्ट में। लेकिन आज उस लेवल का लाइक उस बंदे का ये कॉन्फिडेंस है ना, कि अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर सकता है तो ही कैन डील विद एनी सिचुएशन। अब वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने वो एक्सट्रीम प्रेशर झेल चुका है। भाई, नो वीकेंड्स ऑफ, नथिंग, ना सैटरडे, ना संडे, ना फेस्टिवल्स, नथिंग। उसको कभी छुट्टी दी नहीं 6 महीने तक। उसको बोला भाई ये दिस इज हाई प्रायोरिटी, हमें ये काम करके देना पड़ेगा। ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली ही वर्कड फॉर 6 मंथ्स। फिर इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि उसने रिजाइन ही मार दिया, बोला ऐसी की तैसी प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उसके अगले दिन रिजाइन मार दिया, बोलता अब मैं जाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था ना कि अगर मैं यार नौ लाइक सुबह 9 बजे जा रहा हूँ और अगले दिन 5 बजे आ रहा हूँ, इतने में तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा। तो उसने रिजाइन मारा वहां से, बोलता मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगा जाके। ठीक है, तो अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बोलता अब तो भाई कुछ बड़ा ही फोड़ना पड़ेगा, कि ये तो साले रिकॉग्निशन है नहीं कुछ आईटी में। है ना, तुम कुछ भी करके दे दो, तुम्हारे को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि तुमने किया किसके लिए, क्यों किया, तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं आने वाला। है ना, तो वो चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, पर्टिकुलरली दोज दैट आर अनफेमिलियर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना है तो लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, गेट अ जॉब। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो
तो जॉब ले लो। अगर आप जॉब कर रहे होगे, आप लोगों से डील करोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, आप वो चीजें कर सकते हो जो आपको पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे दिखेगा, ठीक है ना, आप बात कर पाओगे, आंखों में आंखें डाल के। अदरवाइज तुम्हें भी पता है कि भाई अगर नहीं कमाओगे तो घर वाले भी कभी ना कभी सुना देंगे, ठीक है, तुम्हें लग जाएगा यार ये तो घर वाले ही नहीं छोड़ रहे, बाहर वाला क्या छोड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, faith in one's ability to meet stressful situations, particularly those that are unfamiliar, ठीक है, अनफेमिलियर सिचुएशन के साथ अगर आप डील करना जानते हो तो फिर आप कुछ भी हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ डिसीजन। व्हाट इज स्पीड ऑफ डिसीजन? एबिलिटी टू अराइव एट वर्केबल डिसीजंस, एबिलिटी टू अराइव एट वर्केबल डिसीजंस, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है, अप्रोप्रिएटनेस, जो आपने डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है, सेकंड इज क्विकनेस, ठीक है, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्विक डिसीजन लिया लेकिन गलत लिया, अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया लेकिन टाइम बहुत लग गया, तो वो बैलेंस बिटवीन क्विकनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके चीजें चलेंगी। स्पीड ऑफ डिसीजन, व्हाट इज स्पीड ऑफ डिसीजन? एबिलिटी टू अराइव एट वर्केबल डिसीजंस, फर्स्ट इज अप्रोप्रिएटनेस एंड सेकंड इज क्विकनेस, ठीक है, क्विकनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएटनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर दो फॉर द नेम सेक, ठीक है ना, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस करना है, गॉट इट। So this is your speed of decision, ability to arrive at workable decision. Two points are there. One is appropriateness and second is quickness. Next is ability to influence the group. Next is ability to influence the group. What is ability to influence the group? Ability which enables an individual. Ability which enables an individual to bring about willing effort. Ability which enables an individual to bring about willing effort from the group for achieving the objective. कि आप में वो बात है कि आप पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज राइट नाउ इन आईयू में। तो क्या हुआ, इनका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होना था, तो एक रात पहले बारिश हो गई। तो जब वो लोग ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का आखिरी वाला टास्क कर रहे थे, आपने देखा होगा कि एक रैंप एंड स्लाइड करके एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कैंडिडेट्स उस पर क्लाइम कर रहे थे ना, तो कैंडिडेट्स के शूज में सॉइल लग रही थी और वो जाके वहां स्लॉट्स में फिल हो जा रही थी, जिसकी वजह से वो जो स्लॉट जो ग्रिप देता था वो ग्रिप नहीं दे पा रहा था, ठीक है, तो एवरीबॉडी वाज स्लिपिंग। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व करी एंड देन ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने क्या किया, उसने गया और उसने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि यार मैं क्लाइम कर लेता हूँ और पहले ही निकल जाता हूँ, भाड़ में गई पूरी टीम, ठीक है, उसने देखा कि भाई ये तो मिट्टी है लग रही है, मिट्टी की वजह से ग्रिप नहीं बन रही है, तो मिट्टी को हटाना पड़ेगा स्लॉट से। ही स्टार्टेड रिमूविंग सॉइल फ्रॉम द स्लॉट्स एंड ये देख के उसने किसी को बोला नहीं कि ऐसा करो, उसने अपने एक्शन, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने मिट्टी हटाना शुरू किया और लोगों ने देखा कि यार ये मिट्टी हटाने से लोगों की ग्रिप बन रही है, ठीक है, तो चार लोग और मिलके आ गए, चार लोग मिलके फिर मिट्टी हटाने लगे दूसरे स्लॉट से, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका ग्रुप सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, एंड दे वन दी रेस। तो ये चीज कोई कोचिंग वाला थोड़ी सिखा देगा, ये तो चीजें आपकी, अगर आपको एक्सपोजर होगा दुनियादारी का, समझ होगी, ठीक है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो ही ये काम हो सकता है, ठीक है, ये कोई सिनेरियो आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिनेरियो अपने आप बनते हैं, गॉट इट, और इसमें अगर आप फायदा उठा लो तो उठा लो, ठीक है ना। एंड उसने बिना कुछ बोले पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दिया, सब लोगों से वो काम करवा लिया जो वो खुद कर रहा था, ठीक है ना। तो एबिलिटी विच enables an individual to bring about willing effort from the group for achieving the objective, विलिंग एफर्ट था उनका सबका, बिना कुछ बोले सब लोगों ने मिट्टी हटाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस लेवल की आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मतलब बिना कुछ बोले, और बोल के अगर इन्फ्लुएंस कर दो तो वेल इन गुड है, लेकिन बिना बोले अगर इन्फ्लुएंस कर दे रहे हो तो वो नेक्स्ट लेवल चीज है। लास्ट OLQ ऑफ फैक्टर 3 इज लाइवलीनेस, ठीक है, मैंने आपको बोला था यू हैव टू मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, ठीक है भाई, चाहे वो आपसे बदतमीजी करे कुछ भी करे, ठीक है ना, आपको स्माइल आपके चेहरे पे रहनी चाहिए, एक बड़ा ही पॉजिटिव आउटलुक दिखना चाहिए,
आपकी लाइफ का, है ना? भले ही आपकी लाइफ में बहुत कष्ट हो, लेकिन सामने वाले को क्यों बताना भाई? वो आपके दुखों का लाइक वो शेयर नहीं करने वाला कि अरे भाई तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, चिंता मत कर और भी बता। वो तुम्हारे मजे ही लेगा, ठीक है? वो कुछ और ऐसी बातें तुम्हारे से मुंह से निकलवा लेगा, फिर तुम ही बोलोगे भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है ना? मेरे एक स्टूडेंट है लाइक ही गॉट रिकमेंडेड फॉर एएफएसबी। तो उससे पहले एक बार क्या हुआ, सीडीएस में उसके लाइक उसके पेरेंट का डाइवोर्स हो गया था, ठीक है? तो उसके लाइक उसने सोचा होगा कि यार डाइवोर्स हो गया है, क्या पता सिंपैथी मिल जाए, ठीक है? ये वो तो उसने बोला कि अच्छा तेरे पेरेंट्स डाइवोर्स हो गए? बोला हाँ सर, लाइक वी आर लिविंग सेपरेटली। तो बोलता तू किसके साथ रहता है? उसने बोला मम्मी के साथ। तो बोलता है यार तेरी मम्मी पापा के बीच में डाइवोर्स क्यों हुआ? ठीक है, वो बोलता है सर ऐसे ऐसे एक ऐसे पॉइंट पे लेके आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है? तूने क्यों नहीं कुछ किया, ये वो तू क्या कर रहा था वहां पे जब तेरे पापा तेरी मम्मी को मारते थे? भाई वो अलग से बोलता कि यार ये कहाँ चले गए यार, ये मैं तो सोच रहा था पता नहीं ऊपर ऊपर से बात करेगा, ये तो बिल्कुल अंदर ही घुस गया, ठीक है ना? तो वो तो तुम्हारी ऐसी इनसिक्योरिटीज को निकालेगा और वहीं पे वो पिंच करेगा जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, ठीक है? तो आपको लगेगा कि यार लाइक बस ये ना पूछे, और वही पूछेगा वो जो आपकी इनसिक्योरिटीज है ना? तो व्हाट इज लाइवलीनेस? लाइवलीनेस इज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ बोयंट, ठीक है, व्हेन मीटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट चीयरफुल एटमॉस्फेयर। आपने कैप्टन विक्रम बत्रा की वो वीडियो देखी है, ये दिल मांगे मोर? भाई जान हथेली पे लेके घूम रहा है, ठीक है? अगला मिशन भी जाने को तैयार है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी चलेंगे एक और पहाड़ कैप्चर कर लेंगे। लेकिन भाई उसी पर्टिकुलर मिशन को पार करते हुए उसके कितने साथी मर गए, उसको वो पता है, लेकिन स्टिल उसका मोराल देखो कितना अप है कि अरे साहब एक एक थोड़ी छोड़ो, आप दूसरी पहाड़ी बताओ कौन सी ले कैप्चर करनी है। तो वो बंदा अगर ऐसे बात करेगा तो उसके ट्रूथ का मोराल कितना हाई होगा कि साहब ने बोल दिया है ये दिल मांगे मोर, अब क्या है, ये अब पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर साहब यही बोल देते कि भाई अब नहीं जा पाएंगे इस मिशन पे, ठीक है, एक मिशन से बच के आ गए, अब लौट के चलते हैं भाई, अब छुट्टी लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, हो गया, ठीक है? तो लाइक ट्रूथ का क्या मोराल रह जाएगा, है ना? तो लाइक कैप्टन विक्रम बत्रा भाई अमर हो गए ये बोल के, ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना? मतलब बीच वॉर में, ठीक है, ये बोल के कोई बंदा शहीद हो जाए, परमवीर चक्र अवॉर्डी, ठीक है, सोचो उनका ऑरा क्या होगा, है ना? तो दिस इज कॉल्ड लाइवलीनेस, ठीक है? भाई आसपास मौतें हो रही है, ठीक है, थाउजेंड्स लाइक लोग लाइक मर रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज एबल टू, ठीक है, मेंटेन दैट लाइक cheerful atmosphere around his soldiers, है ना? उनको लाइक डिमोरलाइज फील नहीं होने दे रहा, ठीक है? तो वो चीज है कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ बोयंट। अपने आप को तो लाइक वो खुश रख ही रहे, ठीक है, अपने आसपास भी एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिविटी की लेयर बना के रखा हुआ है। ये साहब ने बोल दिया तो बढ़िया है, ठीक है ना? तो वो चीज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ बोयंट व्हेन मीटिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग अबाउट cheerful atmosphere। लास्ट फैक्टर इज रिलेटेड टू डायनेमिक, ठीक है? फर्स्ट OLQ इन फैक्टर 4 इज डिटर्मिनेशन। व्हाट इज डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन इज सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स, ठीक है? तो अगर आपने कभी भी रिटन एग्जामिनेशंस में फेलियर्स देखे हुए हैं, एसएसबीज में फेलियर्स देखे हुए हैं, ठीक है, अब जैसे हिंदवी है, इसके फेलियर्स तो मेडिकल होंगे या मेरिट होंगे? हिंदवी तुम्हारा लाइक मेनली क्या मेरिट रहता है, क्या रहता Merit only. है? मेरिट रहता है, ठीक है ना? तो लाइक ये सेटबैक्स ही हैं कि यार लाइक इवन आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड आई एम नॉट एबल टू लाइक अचीव व्हाट आई वांट, है ना, ट्रूली डिजायर। तो ये सेटबैक्स ही हैं, बट लाइक इवन आफ्टर दीज सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स हिंदवी इज हेयर, ठीक है, शी इज स्टिल फाइटिंग, शी इज अ फाइटर, ठीक है? इसके बाद अगर 4 रिकमेंडेशन के बाद भी अगर कोई एकेडमी ना जा पाए, तो वो बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हैं ये कैसी प्रोसेस है, ठीक है? मतलब लाइक 4 बार लाइक आपने रिकमेंड कर दिया, उसके बाद भी आप एकेडमी नहीं भेज रहे, एक बार तो आप लाइक ऐसे मार्क्स दे दो भाई कि भेज दो, खत्म करो ये दर्द, है ना, दुख दर्द और पीड़ा। ओके, तो लाइक दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, ठीक है, लाइक सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स।
ठीक है ना? देयर इज अ सेइंग that your wounds are proof of your resilience, not defeat. ठीक है, योर वुंड्स आर प्रूफ ऑफ योर रेजिलियंस, नॉट डिफीट। ठीक है, तो जो आपके ये जो सेटबैक्स हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको तो आपको एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनना चाहिए। अगर आप सीडीएस में फेल हुए हो, लेकिन मतलब आपके एग्जाम क्लियर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक सीडीएस पूरे क्लियर ही नहीं हुए तो फिर वो बैज ऑफ ऑनर किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? मतलब आपने अपनी गलतियों से सीखा एंड फाइनली यू क्लियर दोज एग्जामिनेशन, फाइनली यू अचीव, ठीक है, व्हाट यू ट्रूली डिजायर। तो वो चीज, तो सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स। ठीक है, अब इसमें भी 3 पॉइंट्स आते हैं आपके डिटर्मिनेशन में। फर्स्ट इज फिक्सनेस ऑफ पर्पस। ठीक है, आपका पर्पस, ठीक है, फिक्स है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि नहीं है। ठीक है ना? तो यू हैव टू मेक श्योर दैट लाइक यू आर डिटरमाइंड कि भाई फौज में जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? वो चीज हो गई, फिक्सनेस ऑफ पर्पस हो गया। सेकंड इज मेंटल कंसंट्रेशन। ठीक है, मेंटल, लाइक मेंटली आप कंसंट्रेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है, चीजों पे। एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ विल। ठीक है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है ना? आप, अगर आपकी विल स्ट्रांग है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। ठीक है, यू कैन फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ में भी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, आई हैव अ स्ट्रांग विल पावर। ठीक है, आपने जो डिसाइड किया वो आप करोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ विल। जैसे अभी रिसेंटली मैं बताऊं, लाइक रिसेंटली आई विजिटेड वैष्णो माता। तो लाइक मैं अपनी मम्मी के साथ गया था और लाइक फैमिली मेंबर्स के साथ गया था। तो मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट होने के बाद, ठीक है, ना तो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा, हम तो प्रॉपर खाना खा रहे थे रगड़ के, ठीक है ना, हमें तो जहाँ भंडारा दिख रहा था हम घुस जा रहे थे कि भाई खा लेते, रगड़ देते हैं। ठीक है, बहुत एनर्जी चाहिए एंड ऑल। लेकिन मम्मी लाइक मतलब ऐसा खा रही थी कि जैसे जो खाया जा सकता है। ऐसा डायबिटिक पेशेंट की दाल मिल गई, दाल खा ली, राजमा मिल गया, वो पीसेस मतलब ऐसे करके बिट्स एंड पीसेस में। मतलब मेरी मम्मी ने लाइक 50+ ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, पूरी वैष्णो माता लाइक नीचे से एंड तक चढ़ा। ठीक है, और वो भी डिफिकल्ट वाला सर्किट। ठीक है ना, जो जिसमें लाइक खड़ी चढ़ाई है, वो वाला सर्किट। एंड फिर उसके बाद क्लाइंब भी कर लिया एक ही रात में। हम लोगों ने कोई ब्रेक ही नहीं लिया बीच में। ठीक है। तो मैंने तो बोला कि मम्मी क्या कर रहे हो ये। ठीक है, मतलब आप डायबिटिक पेशेंट हो, हम लोगों की ऐसी की तैसी हो गई। मेरे बीच में एक बार को मन में आ रहा था कि भाई थोड़ी देर बैठ लेते हैं, लेकिन मम्मी को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है ये, कैसे हो रहा है, मम्मी को ये शक्तियां कहाँ से मिल रही है। ठीक है, मतलब चढ़ती चली जा रही है, उतर आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? तो अलग ही लेवल का है वो, स्ट्रेंथ है। ठीक है, विल पावर है। ठीक है, जो ठाना है वो करना है। ठीक है, मैंने तो मम्मी को बोला, मम्मी आप टेंशन मत लो, ठीक है, आपको लाइक घोड़ा वोड़ा करवा देते हैं, आप जाओ ऊपर। मेरी मम्मी ने बोला कि घोड़े वोड़े से तो मैं परेशान हो जाऊंगी। ठीक है, घोड़े पे नहीं बैठना मुझे, क्या पता मैं गिर गई घोड़े से तो यहाँ से चलते हुए जाएंगे, सीधा चढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो लाइक घोड़े पे नहीं बैठी, ना घोड़े पे बैठी, ना कोई और चीज थी जो भी लाइक कर सकते थे, है ना? तो वो चीज, व्हाट इज डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन इज सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स। तो ये डिटर्मिनेशन, जब मैंने ये वैष्णो माता वाली ये जो लेटेस्ट क्लाइंब करी, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई खतरनाक है। ठीक है ना? फिक्सनेस ऑफ पर्पस, मेंटल कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल, तीनों चीजें मुझे समझ आ गई वहां पे। ठीक है ना? सारी चीजें क्लियर कट दिखने लगी कि भाई ये स्ट्रेंथ ऑफ विल क्या है, मेंटल कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना? एंड फिक्सनेस ऑफ पर्पस। ठीक है, हम लोगों को ना ऊपर से आते हुए जो दूसरा वाला रास्ता था, आज लाइक 2 सर्किट बन चुके हैं वहां पे। ठीक है, एक सर्किट है 5.5 किलोमीटर का और एक है 6.5 किलोमीटर का। हम लोग 6.5 से जा रहे थे। तो ऊपर से आते हुए ना जितने भी लोग थे, हम लोगों को देख के बोल रहे थे कि आप इस वाले रास्ते से क्यों आ रहे हो। तो वो भाई हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं, बोलते हैं आप गलत रास्ते से आ गए, ये तो खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, और लाइक मेरे को जब ये लोग कोई बोलते हैं ना, मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरी मम्मी की होती है। मैंने सोचा मम्मी कैसे चढ़ पाएंगे यार, हम तो गलत रास्ते पे आ गए। लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी, मेरी मम्मी ने बोला कि अब तो चढ़ते चलो बस, अब तुम देखो मत पीछे। मैंने बोला ये भी सही है भाई, जब मम्मी आगे बढ़ रही है फिर क्या दिक्कत है। फिर हमने ऐसे क्लाइम कर दिया धीरे धीरे पहुंच के। ठीक है, फिर आता है हमारा
लाइक 14th OLQ, दैट इज करेज। ठीक है, व्हाट इज करेज? एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड टेक पर्पसिव रिस्क विलिंगली। ठीक है, व्हाट इज करेज? एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड टेक पर्पसिव रिस्क विलिंगली। अब जैसे जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही इज राइट नाउ इन इंडियन आर्मी, अभी वो लेफ्टिनेंट है। तो लाइक आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड वर्किंग, जिसकी वजह से लाइक ही वाज नॉट एबल टू क्लियर एनी रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लाइक एक बार क्या हुआ, एक एसएसबी में उससे 20 एसएसबी भोपाल में इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है कि भाई ये बता, तू आर्मी बैकग्राउंड से है, तेरे पापा आर्मी में 30 साल सर्व कर चुके हैं, ठीक है, तू बोल रहा है यू आर पैशनेट अबाउट डिफेंस फोर्सेस, तूने जिंदगी में आज तक एक रिटन एग्जामिनेशन नहीं निकाला डिफेंस का, और तू मुझे बोल रहा है कि तू बहुत बड़ा वो है, ठीक है, लाइक पैशनेट है फोर्सेस को लेके, और ये फालतू बातें करता रहता है मुझसे। भाई उसको बड़ा बुरा लगा। ठीक है, ही केम बैक फ्रॉम दैट एसएसबी, ऑब्वियसली ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके दिल पे लग गई वो बात। ही रिजाइन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला भाड़ में गई नौकरी, और लाइक 4 LPA का पैकेज था, बोलता है कि भाड़ में गया 4 LPA साला। मैंने सोचा था कि जॉब की थोड़ी इज्जत होगी, वो तो मुझे लाइक एग्जाम पे रगड़ दिया। ठीक है, उसने 6 मंथ्स की प्रिपरेशन करी, और उसने फिर एग्जाम्स दिए, सीडीएस, एफकेट, सीपीओ, सीजीएल, ठीक है, सीजी कैट, जो एग्जाम आया हाथ में सब दिया और रगड़ दिया। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स ही क्लियर्ड ऑल द एग्जामिनेशन। फिर वो लाइक ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद गया एसएसबी। ठीक है, तो वहां पर इंटरव्यू ऑफिसर पता है क्या बोलता है? दूसरा इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है कि यार ये सब तो ठीक है, एग्जाम एग्जाम, तो जॉब क्यों नहीं कर रहा है? बोल रहा है, वो ऐसे बोलता कि ये भगवान, ही साला मतलब जॉब करके जाऊं तो एग्जाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं, एग्जाम क्लियर करके जाओ तो बोल रहे तू जॉब नहीं कर रहा, तू मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, तो लाइबिलिटी है अपने खानदान पे, है ना? तो बोलता करूं क्या? एंड उसने रिस्क लिया, पर्पसिव रिस्क लिया, कि भाई जॉब छोड़ेगा तो लाइक थोड़ा तो वो रिस्क है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने एग्जाम्स क्लियर करे, एंड फाइनली ही लाइक सेट फॉर द प्लेसमेंट एज वेल। उसने ऑफ कैंपस फिर से प्लेसमेंट के लिए बैठा, एंड ही सिक्योर 13 LPA। सोचो 4 LPA पे अगर वो 5 साल भी उस कंपनी में रहता, तो भी उसका 13 LPA नहीं हो पाता। लेकिन ही रिस्क, उसने पर्पसिव रिस्क लिया, he quit from that organization, and then he switched to this competitive exams preparation, and then finally he like also got placed for 13 LPA। एंड भाई जिसका 13 लाख का पैकेज होगा, ठीक है, तो वो लाइक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही उसमें। तो उसने सारे एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, पैकेज भी अच्छा था, पैसा भी आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस उसका अलग नेक्स्ट लेवल पे था। ठीक है, तो इतना करेज होना चाहिए। ठीक है, टू लाइक एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड टेक पर्पसिव रिस्क विलिंगली। And last but not the least is stamina. Yeah, and we are not just talking about physical stamina. Mental stamina is very important. ठीक है, मेंटली आप उतना स्ट्रांग हो के नहीं हो। ठीक है, अगर आप मेंटली हार मान जाओगे, ठीक है, तो फिजिकल लाइक स्टेमिना किसी काम का नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल लाइक स्टेमिना, कैपेसिटी टू विथस्टैंड प्रोटेक्टेड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, कैपेसिटी टू विथस्टैंड प्रोटेक्टेड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, आप मेंटली अपने आप को कितना स्ट्रांग रखते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंटली आप चीजें झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो, हर एक चीज आप पे प्रेशर डालेगी। ठीक है, आप जाओगे रनिंग करोगे कि बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर से क्या होगा? आपकी बॉडी बनी तो रही है, खराब थोड़ी हो जाएगी। अगर आप रनिंग करने जा रहे हो, प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है आपकी बॉडी पे, लेकिन वो लाइक आपके लिए ही काम आएगी, आपकी बॉडी ही निखरेगी। गॉट इट? अगर लाइक माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आपकी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, आपका प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, आप लाइक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना सीख रहे हो। ठीक है ना? तो आपका मेंटल स्टेमिना बिल्ड हो रहा है, आपका फिजिकल स्टेमिना बिल्ड हो रहा है। ठीक है ना? लाइक आप देखोगे जब आप रनिंग करते हो शुरुआत में, जब तक आपने लाइक रनिंग नहीं की तो आपके लाइक दर्द होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली रनिंग करते जाओगे कंसिस्टेंटली, एक टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ होता भी है बॉडी में दर्द वर्द, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वो चीज है मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना। ठीक है, कैपेसिटी टू विथस्टैंड प्रोटेक्टेड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दीज आर दी 15 OLQs। आई होप यू गाइज, ठीक है, लाइक गॉट दिस 15 OLQs, है ना?
And out of these 15 OLQs, there are 7 OLQs which are least trainable. ठीक है, लेस ट्रेनेबल लाइक क्वालिटीज हैं. ये लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज कौन सी है? फर्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, फोर्थ इज कोऑपरेशन, फिफ्थ इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्स्थ इज लाइवलीनेस एंड सेवंथ इज करेज. सो ये जो 7 लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज है ना, अगर आपने इनमें कोई इंटेंसिटी कम दिखाई, ठीक है, उनको एक सर्टेन लेवल की थ्रेशोल्ड चाहिए हर एक क्वालिटी की. लेकिन ये जो 7 लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज है, ठीक है, क्योंकि 49 वीक्स की ट्रेनिंग है आपकी, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी. 1 साल में लाइक ये जो चीजें है ना, ये डेवलप नहीं की जा सकती. ये आपको खुद ही अपनी इंटेंसिटी लाइक उस थ्रेशोल्ड के लेवल पे लेके आनी पड़ेगी. ठीक है. अब जिस बंदे को लाइक जिसकी रीजनिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, तो वो कैसे डेवलप करेगा? यू हैव टू बिल्ड ऑन योर ओन. ठीक है. आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर एग्जाम्स, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे डाउट करता है वो. ठीक है ना. आप जब जॉब क्लियर नहीं कर पाते, आप जॉब नहीं करते हो, ठीक है, आपने जब ऐसे डिसीजंस लिए होते हैं पास्ट में, वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी पे डाउट करता है ना. सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, अगर आपने आज तक किसी टीम गेम में खेला ही नहीं है, लाइक आपने किसी लाइक प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया एज इन अ टीम, ठीक है, आपने हर एक गेम ऐसा खेला है जिसमें इंडिविजुअल इंसान खेलता है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट में पार्ट लिया जिसमें सिर्फ एक बंदा ही काम करता है, तो ऑपरेशन वाला एलिमेंट कट जाएगा. ठीक है ना. आपको टीम के साथ काम करना ही पसंद नहीं, आपने कभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, आपको कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं गई, स्कूल में भी नहीं, कॉलेज में भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं. तो इसका मतलब आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट नहीं कर पाओगे, आप ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो वो क्यों देगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. देन कम्स दी लाइवलीनेस. छोटी छोटी बात पे आप लाइक नेगेटिव हो जा रहे हो, आपका मुंह बन जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. एंड फाइनली योर करेज. ठीक है, ये 7 लेस ट्रेनेबल क्वालिटीज है. ठीक है. मेक श्योर कि जब भी आप डील करो, ठीक है, इन एनी ऑफ द टेक्निक, बीट योर साइक, जीटी और इंटरव्यू, ठीक है, तो ये क्वालिटीज में लाइक आपको लाइक इंटेंसिटी हाई रखनी है ना. So this is all about today's session. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll wrap up this session. We'll meet tomorrow, 5 a.m. sharp. Anyone having any doubts? कोई डाउट? भाई या तो मैं इतना अच्छा समझा रहा हूँ, ठीक है, या तुम थक चुके हो कि अब तुम्हारा हो चुका है कि भाई अब कल ही होगा जो होगा, है ना. So let's wrap up this session. We'll meet tomorrow, 5 a.m. सर वो Okay. रिगार्डिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन. मीन जिसकी परसेंटेज 10th और 12th में सेम हो, उसका क्या है होगा फिर? तुम्हारी पसंद लाइक सेम भी तो अलग है ना. 95 है तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. 65 है, 55 है तो डिफरेंट है ना. ठीक है ना. तुम किस कैटेगरी में पढ़ते हो? मैं 86. तुम, हाँ, तुम तो भाई ये वो है फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. कि मतलब साला लाइक एक मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना. मतलब उसका उसका परसेंटेज आया 97, ठीक है, और उसके बाद उसका एक और परसेंटेज आया 95. तो वो इसलिए परेशान थी कि सर 2% कम हो गए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बात पे स्कोल्ड किया था. मैंने उससे पूछा कि लाइक टेल मी 3 इंस्टांसेस वेयर योर फादर स्कोल्डेड यू. तो बोलती सर 95 से 97, लाइक 97 से 95 हो गए. मैंने बोला ये इस पे डांट दिया तुम्हारे पेरेंट्स ने? तो बोलती है हाँ सर ऐसा हो गया था इसलिए. ठीक है, मतलब बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ. ठीक है ना. अगली बार वो लाइक ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके आई उसके बेसिस पे. ओके, ठीक है ललित, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई. ठीक है, उन गरीबों से पूछो जो बेचारे 55 65 पे अटके हुए हैं. ठीक है, तुम्हारा तो लाइक तुम अंबानी टाइप्स हो मार्क्स के टाइम पे. सर 3 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उसमें तो 3 पास हो जाते हैं 90%. एग्जैक्टली. ठीक है, और ये बोल रहा है कि सर जिसका बराबर होता है उसका क्या इश्यू है? कोई इशू नहीं है भाई, तुम तो जिंदगी के मजे लो. ठीक है, और एनडीए लेवल पे अगर तुम इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो बढ़िया है. ठीक है ना. ओके, चलो, यस. बाय बाय, गुड नाइट, बाय मॉर्निंग में बाय. मिलते हैं.